Jai Shri Krishna, Jai Mahesh Sabko. Thank you जय so श्री much, everyone, for joining. Um, let's start this very special Sunday on this amazing, exciting event of International Women's Day. आज काफी एक very interesting topic है जो आज हम discuss करेंगे. Before that, let me start by giving a very quick self introduction. मैं खुद के बारे में सबको बताता हूँ. I'm Prateek Manodhanya, a part of MVPM's scholar committee. I am a business graduate and I'm an MBA from IIM Bangalore and currently work with a management consulting firm called Bain. अगर आप में से काफ़ी लोग पिछले 2-3 महीनों में 3-4 महीनों में इनफैक्ट काफ़ी वेबिनार्स ज्वाइन किए होंगे and you would have seen all of us around. So I'm sure we'll have familiar faces. But thanks so much again for making time on a Sunday morning for this exciting webinar. What I want to do is talk a little bit about MVPM क्योंकि आप में से काफी लोग पहली बार भी join कर रहे होंगे. MVPM, which is Maheshwari Vidya Pracharak Mandal, is a 90 plus years old organization that has been working, that has been doing transformational work absolutely in the field of education. So started out of the Pune Mumbai belt. As of today, MVPM impacts more than 9,000 students on an annual basis through its hostels, through its scholarships, through its skill development programs, through its entrepreneurship programs. So request and to showcase a little bit more about MVPM, I'm just going to play a quick 2-minute video. Request everyone to look at this with a great amount of detail and see the amazing work that MVPM has been doing. And of course, we're always here with open arms in case someone wants to come, take their kind of step forward and help out with what we're doing at MVPM. Moving to a video which will explain what MVPM stands for and what MVPM is doing. शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा तो जैसे आप लोग ने देखा होगा, the range of activities that we have at MVPM, from the hostels to the scholarships,
And today's event, in fact, is brought to you by the Scholars Committee that was established. The entire scholarship program was established in 2012, and we have more than 100 scholars where we have acknowledged and given the right recognition to scholars from the Maheshwari community with scholastic excellence at their undergrad level or postgrad or research levels. So I'm also a part of that same journey. And then without further ado, let's also jump into today's exciting event. So as I said, आज Women's Day special है हमारे पास, and we have a very, very power-packed set of moderators and speakers who have been kind enough to make time for us. It's going to be a very exciting, very informative session. So request everyone to not just come here, listen, but also आज जो सब आप सीखेंगे, सुनेंगे, वो आगे जाके दूसरे लोगों को भी आप सिखाएंगे और सुनाएंगे. So that way we spread the message around some key critical topics that we're going to be talking about today. And with that, I'll actually introduce today's special host, special moderator, Dr. Poonam Nagori. So a little bit about her. She's a dental surgeon who's been practicing for more than 30 years. She has a multi-specialty dental clinic in Prabhadevi, Mumbai. And she's graduate from the Nair Hospital in Nair Dental College. She's a fairly multifaceted woman, very, very active, very actively involved in Madhya Mumbai Maheshwari Pragati Mandal. Needless to say, I mean, she has a lot of accolades in her bag already. She's won the Sushrita Nari contest in Mumbai, was a runner-up in the All India Sushrita Nari contest held by Akhil Bharatiya Maheshwari Pragati Mandal. So a woman with multiple talents, multiple kind of, responsibilities that she's picking up. And we're very, very excited to have you, ma'am. Thank you so much for making the time. I'll hand it over to you to take this session forward and enlighten all of us with the amazing set of topics that we have today. Thank you so much, Prateek, for your kind words. MBPM Scholars Committee की तरफ से आप सबको इंटरनेशनल विमेंस डे की खूब खूब बधाई. आज का हमारा पहला टॉपिक is very close to my heart. It is about anemia. हम अपने परिवार के लिए तो बहुत चिंतित रहते हैं, उनको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पूरी प्रयास अपना पूरा लगा देते हैं, जद्दोजहद. पर क्या अपन अपने खुद के लिए भी अपना ही ध्यान रखते हैं क्या? अनीमिया या जिसे हिंदी में कहते हैं रक्ताल्पता is an extremely common but often neglected condition in women. This is of great concern and needs a lot of awareness. To give us some insight about anemia and also to talk about the very important post-delivery period in a woman, I would like to invite our first speaker for today, Dr. Mrs. Shruti Toshniwal Mantri. She has done her MD Pediatrics and her clinical hematology from KEM Hospital, Mumbai. She has presented papers in various national conferences and publications and has peer-reviewed national journals. She is an MPBM Scholars Awardee. She has recently started a beautiful journey of motherhood, and hence she is the best person to debunk the common myths regarding the postpartum or the post-delivery period. So I welcome Dr. Mrs. Shruti Toshniwal Mantri to take on the mantle and tell us more about anemia. Dr. Shruti, my first question to you would be, please tell us what is anemia and what is the magnitude of anemia in our country, especially for women. So, good morning everyone. I would like to thank MVPM for giving me an opportunity to discuss two very important topics which are very close to my heart regarding anemia and the care in the postpartum period. So, I would like to thank Nagori ma'am for a very kind introduction. And without further delay, we'll start our discussion. And we will cover this question answer format. So me and ma'am will discuss about the common questions and I will try to answer them so that we make an interactive
according, so I will start my topic. I'll start a screen share just in a minute. So my screen is visible to everybody? Yes. Yes. So I'll start. So अनीमिया हमारी कंट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर इशू है, जो बहुत ही ज्यादा निग्लेक्टेड इशू है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि अनीमिया का सिवियरिटी कितना है, उसका हमारे लाइफ पे कितना इशू है। तो हमारी कंट्री में हर साल एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसमें ये जो कॉमन डिसीजेस के बारे में डेटा निकलता है, हमारी कंट्री का एक डेटा निकलता है। तो ये जो मैंने 2 चार्ट्स लगाए हैं, ये हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का डेटा है। उसके अकॉर्डिंग अनीमिया का प्रेवलेंस हमारे कंट्री में 68% है वुमेन में एंड 65% है चिल्ड्रन में, तो बहुत ज्यादा है। और ये डेटा हम 2015 से कंपेयर करते हैं, तो 2015 में इसका इंसिडेंस 50% था, जो अब 68% हो गया है। इतना अवेयरनेस, इतना सोशल अवेयरनेस, इतना सोशल मीडिया होने के बावजूद भी हमारा इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है, और ये हमको टैकल करना बहुत जरूरी है। एक लिस्टिंग आती है कंट्रीज की अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ अनीमिया, तो 180 कंट्रीज की ऐसे लिस्टिंग आती है, तो इंडिया का रैंक उसमें 170 है। तो आप सोचिए कि ये प्रॉब्लम हमारे कंट्री में कितना डीप रूटेड है और हमें इसका अवेयरनेस करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब अनीमिया किसको बोलते हैं? तो अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी। तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसमें कुछ वैल्यूज है जिसको हम अनीमिया कहते हैं, क्योंकि जनरली हमें पता ही नहीं अनीमिया किसको कहते हैं। ये जो वुमेन में हीमोग्लोबिन लेस देन 11, प्रेग्नेंट वुमेन में, नॉन प्रेग्नेंट में लेस देन 12, मेन में 13 और चिल्ड्रन में 11, ये वैल्यूज को हम अनीमिया कहते हैं। हमें अनीमिया के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? अनीमिया के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। एज अ नेशन मैं बात कर रही हूँ, एज अ नेशन अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम है तो हमारा कितना नेशन का नुकसान होता है। तो ये एक कुछ फिगर्स है जो एक सर्वे में निकाले गए हैं उन्होंने। तो अगर अडल्ट्स में प्रोडक्टिविटी कम है तो इसका ट्रांसलेशन होता है लॉस ऑफ 4% ऑफ जीडीपी, और वो अराउंड कितना है? तो 7.8 लाख करोड़ लॉस है नेशन को। और ये 7.8 लाख करोड़ कितना है हमारे लिए? तो ये हमारे हेल्थ बजट, जो हमारा हेल्थ बजट है उसके 5 टाइम्स है। तो इतना सिंपल प्रॉब्लम है जिसका इतना सिंपल सोल्यूशन है, और वो अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे नेशन का कितना बड़ा नुकसान है इसमें। और अनीमिया के कारण हमारे प्रेगनेंसी में बहुत इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ है। हमारे जो बच्चे हैं उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, इम्यूनिटी बहुत पुअर है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और इनके कारण जो कॉस्ट है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी के कारण जो लॉस है वो तो है ही, बट ड्यू टू लो इम्यूनिटी, ड्यू टू पुअर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, जो हॉस्पिटलाइजेशन लग रहा है उसकी वजह से भी हमारे देश का बहुत लॉस है। और अगर हम अनीमिक है तो हमारा मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण हमारे इसमें फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ये अनीमिया मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबीइंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैम, so what will you say is the importance of having good hemoglobin, and So- why is it important to treat anemia in the first place? यस, सो गुड हीमोग्लोबिन, हमारा हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरी करता है। हमारे हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की एक्सट्रीमली ज्यादा जरूरत होती है, और हमारा अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत पुअर है तो हमको हमारे ऑर्गन फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश का कितना नुकसान है इस अनीमिया के कारण। ठीक है, सो अभी हम I was just going to ask you this. What are the causes Yes. for anemia? Let's enumerate. यस। सो अनीमिया के बहुत बहुत ज्यादा वेरिड कॉजेस हैं, बट मैं यहाँ सिर्फ कॉमन कॉजेस डिस्कस करना चाहती हूँ। जो सबसे कॉमन कॉज, सबसे डीप रूटेड कॉज हमारे कंट्री में है वो है न्यूट्रिशनल अनीमिया। सो हमारा हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए हमको आयरन, B12 और फोलिक एसिड, ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है।
और इसके अलावा भी बहुत है, बट ये मेजर 3 इम्पोर्टेंट है। सो ये अगर हम डाइट पुअर है हमारा, तो हमें इसकी कमतरता है, या फिर हमारे लॉसेस ज्यादा है। तो डाइट पुअर कैसे हो सकता है हमारा, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे फूड में हम आयरन का कैसे एनरिच कर सकते हैं, हम कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खा सकते हैं जिससे हमारा आयरन, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। और हमारे जो फूड फैट्स है, हाँ, बहुत सारे लोग डाइटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे फूड फैट्स है हमारे कंट्री में, जिसकी वजह से हमारा डाइट इतना अच्छा होके भी आयरन डिफिशिएंट हो जाता है। और अगर हमारे लॉसेस ज्यादा है, लॉस मतलब जैसे मेंस्ट्रुअल लॉसेस है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ लॉसेस है, और उसके अलावा हमारा अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे बच्चों में और वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई का डिस्क्रिपेंसी हो रहा है। मतलब हमारा यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो एंड में हम अनिमिक हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो जिसकी वजह से हमारा ब्लीडिंग हो जाता है, ब्लड लॉस है, पुअर अब्जॉर्प्शन है, ये बहुत कॉमन कॉजेस है न्यूट्रिशनल अनीमिया के। इसके अलावा मैं यहाँ एक और एक्सप्रेस करना चाहूंगी थैलेसीमिया को। थैलेसीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अनीमिया है हमारी कंट्री में, और जो बहुत ज्यादा जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। और मैं आपको बताती हूँ, अगर थैलेसीमिया मेजर है किसी को, तो उसके लिए हमारा जो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका लोड है, वो अराउंड 20% ब्लड थैलेसीमिया के लिए लगता है। और वो बहुत ज्यादा इजीली प्रिवेंटेबल, एक सिंपल टेस्ट करके, और वो सिंपल टेस्ट हम जनरली नहीं करवाते हैं हमें, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं अपने टॉक में आगे बताऊंगी कि हम थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के लिए क्या कर सकते हैं। और जो बाकी कॉजेस ऑफ अनीमिया है, जो जो क्रॉनिक डिसीजेस है, लिवर डिसीज है, किडनी डिसीज है, जो हमारे डॉक्टर्स के पे हम छोड़ देते हैं वो बाकी डायग्नोज करने के लिए, तो ये सारे कॉमन कॉजेस ऑफ अनीमिया आज हम डिस्कस कर रहे हैं। So what would you say are the early signs and symptoms of anemia? Because I mean, जब अपन blood test करवाते हैं तब तक तो शायद the process is already it's already begun. So what would you say are the early signs? What should we look out for? Yes. So मैंने एक बहुत अच्छा कार्टून डाला है, आप सब उसको देख सकते हैं। तो आप सोचिए कि आपको इसमें से कुछ है, जैसे आपको फटीग है, वीकनेस है, चक्कर आ रही है, आपकी स्किन पेल और ड्राई है, आपको कोल्ड हैंड्स और फीट है, आपको दम लग रहा है, आपको छाती में धड़ धड़ कर रहा है, चेस्ट पेन है, हेडेक है, लो इम्यूनिटी है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स है। और इसके अलावा हमारा एक इम्पॉर्टेंट है कि जो हम जनरली निग्लेक्ट हो जाता है, जैसे अभी तक हमने ये डिस्कस किया लो हीमोग्लोबिन की वजह से हमको क्या हो रहा है। बट अगर आपको लो हीमोग्लोबिन नहीं है, बट आपको B12 की कमी है या आयरन की कमी है, जो अभी तक आपका हीमोग्लोबिन लो नहीं हुआ है, तो आपको पैरों में मूंगी आ सकती है, आपको मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम करके प्रॉब्लम होता है, जिसमें इंसान कॉन्स्टेंटली लेग नींद में या बैठे शेक करता है, जो हमारी कंट्रोल के बाहर होता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी आयरन डेफिशिएंसी, इसका कॉज भी आयरन डेफिशिएंसी है। तो हम ये कॉमन सिम्टम्स अगर हमें है, तो हमने हमारे डॉक्टर को मिलना चाहिए, हमने इसकी जांच करवा लेनी चाहिए, इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कैसे है, हमारा एक जनरली टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा है, इंडियंस का टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा है, वो जल्दी से सिम्टम्स के लिए टेस्ट नहीं करवाते, ठीक है देख लेते हैं बाद में करेंगे। बट मैंने बताया है कि ये हम निग्लेक्ट करने से हमारा कितना लॉस है, एज अ कंट्री कितना लॉस है। True. So what would you say, मतलब किन इंडिविजुअल्स को ज्यादा रिस्क है? Who would you say are more at risk? Yes, actually जैसे मैंने बताया है, हमारा डिमांड और सप्लाई, ये सब एक डिमांड और सप्लाई चेन है। तो जिनका डिमांड ज्यादा है, उनमें अगर सप्लाई कम है, तो उनको अनीमिया हो सकता है। तो हमारे जो इन्फेंट्स है, जो प्रीमैच्योरली बॉर्न है, क्योंकि उनके स्टोर्स कम है, जो चिल्ड्रन है उनका डाइट, एक्चुअली चिल्ड्रन जो है, जो फसी ईटर्स है, जो बराबर खाना नहीं खाते हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि क्या खाना चाहिए, जिनके
पेरेंट्स को आइडिया नहीं है कि हम इनका डाइट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों क्योंकि को वो तो क्या आइडिया हो, ग्रोइंग पर पेरेंट्स को आइडिया होना बहुत पेरेंट्स, जरूरी यस है। यस Right, यस, right. वो ग्रोइंग एज में है, उनका डिमांड बहुत ज्यादा है और उनका सप्लाई कम है। और जो एडोलेसेंट गर्ल्स है जिनमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या Which is अगर वो not ऑलरेडी, addressed at all. या विच इज नॉट, Especially, या you will probably give something for the pain, but you will definitely not look at कि भाई इनका hemoglobin का क्या हाल है, अगर Yes, excessive yes. bleeding है तो what is Yes. I mean, is she anemic or not? यस यस। और मैम कैसा है कि अगर हम बॉर्डर लाइन अनीमिया है और हम नॉर्मली भी ब्लीड करते हैं, अगर हम बॉर्डर लाइन वैल्यूज के साथ नॉर्मली भी ब्लीड करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल डिप इनटू अनीमिया, जो बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड है। ऐसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई 10 है हीमोग्लोबिन, ठीक ही है, कोई तकलीफ नहीं है, बट 10 भी अनीमिक है तो हमें नहीं पता है। और प्रेग्नेंट वुमेन जिनको इंक्रीज नीड है आयरन की, और ये आयरन सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके जो डेवलपिंग बेबी के लिए बहुत जरूरी है, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो प्रॉपर वेट होना चाहिए, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, वो सारा हम आयरन से कोरिलेट करते हैं। और जो वेजिटेरियंस है, जैसे हम सभी वेजिटेरियंस है, तो इनमें भी B12 बहुत कम है। हमारा डाइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ है जिसकी वजह से हम आयरन डेफिशिएंट हो जाते हैं। और बाकी सब जो जिनको जीआई प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, जीआई ब्लीडिंग है, वो सारों ने भी अनीमिया के लिए टेस्ट कर लेना चाहिए। So, Dr. Shruti, what will you say will the diagnosis be in case you have anemia? I mean, what will it lead to? यस यस, सो डायग्नोसिस आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, और आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट, जिसको हम सीबीसी बोलते हैं, एक सिंपल ब्लड टेस्ट है सीबीसी, और एक पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन जो हम करते हैं, उसमें से हम अनीमिया का 90% कॉज बता सकते हैं। और 10% कंफर्मेशन के लिए हम थोड़े एक्स्ट्रा टेस्ट करवाते हैं, जैसे हम सीरम आयरन स्टडीज करवाते हैं, सीरम B12 कराते हैं, हम थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करवाते हैं। तो अगर आपको किसी ने ये एडवाइस किया है तो आप बेझिझक ये करवा लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि हम ब्लाइंडली किसी को ट्रीट करना नहीं चाहते हैं। मतलब हम ब्लाइंडली बस really a condition, or I mean, it isn't a disease as such, so it leads to something else, right? The main cause may be something else. So yeah, it is a process. It is a process. Yeah, it's not one day का thing. It's a process. Exactly. तो ये है हमारा डायग्नोसिस पे। What would you say is the treatment for nutritional anemia? Yeah, there you are. सो कि ट्रीटमेंट फॉर न्यूट्रिशनल अनीमिया जनरली हम ओरल सप्लीमेंट्स देते हैं, हम आईवी सप्लीमेंट्स देते हैं, बट आज मैं इसके अलावा डाइट में हम कैसे आयरन इंप्रूव कर सकते हैं उस पर डिस्कस करूंगी। क्योंकि ओरल आयरन सप्लीमेंट्स ये तो हमारे डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब कर देंगे, आप लो भी लोगे, बट आपको अगर मेंटेन करना है, ये आप 3 मंथ्स के लिए लोगे, 6 मंथ्स के लिए लोगे, बट आपको आगे मेंटेन करना है तो आपको डाइट इंप्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप अपना डाइट इंप्रूव नहीं करोगे, आपका अनीमिया इंप्रूव नहीं होने वाला है। तो मैंने ये वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ, I mean, diet is the simplest way to go about it. Yeah, the simplest way. But the simplest way to go about is simplest, non-toxic, without side effects. और जब हम हमारे we change our life practices with it. We can change our life practices. So कुछ common iron rich food है जो वेजिटेरियन सोर्सेस है। मैं यहाँ वेजिटेरियन सोर्सेस के बारे में ये करना चाहती हूँ कि वेजिटेरियन सोर्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स हमारे पास जो है, जो नट्स है, नट्स में जर्दालू जिसको हम बोलते हैं वो बहुत हाई सोर्स है, अंजीर बहुत हाई सोर्स है, रेजिन्स बहुत हाई सोर्स है, काजू, हम सोचते हैं कि यार बादाम खाओ, बट काजू बहुत ज्यादा हाई सोर्स है, बादाम से ज्यादा काजू में आयरन है। ठीक है, जो हमारे सोयाबीन, जो हमारे लेज्यूम्स है जिसको हम बोलते हैं सोयाबीन, राजमा, बहुत ज्यादा हाई सोर्स ऑफ ये है। उसके अलावा पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और ये हमारे वॉलनट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी डेली ग्रेन्स है उसमें भी बाजरा इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन। बाजरा है, रागी है, जवारी है, राइस भी है। आप जान के बहुत ज्यादा ये हो जाएंगे कि पोटैटो इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, बट आप स्किन साथ में खाओ। I didn't know that. या पोटैटो का आप पोटैटो का आप स्किन खाओ, और कितना बदनाम है देखिए। हाँ, बहुत बदनाम है। पोटैटो विद द स्किन इंटैक्ट इज अ वेरी वेरी, इट हैज मोर आयरन देन पालक। Oh really? Okay. Yeah. So that's it has more
That's a new thing that I learned today. I didn't know that as well. So it's a very important source of iron. हमारी green leafy vegetables है, जो पालक है, जो हम सब जानते हैं, वो बहुत rich source of iron है. और इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो हम जो काले मनुका जिसको बोलते हैं, prunes जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, prunes is also very rich source of iron. तो ये सारे हम हमारे डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम आयरन डिफिशिएंट नहीं होंगे. इसके अलावा मैं एक हाईलाइट करना चाहती हूँ, जैसे हमारा डाइट में कुछ इनहिबिटर्स होते हैं और कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जो हमारा आयरन अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं. तो अगर हम ये आयरन विटामिन सी के साथ ले, जैसे टमाटो और नींबू के साथ हम ये आयरन सोर्सेस ले, तो हमारा अब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 40 to 50% बढ़ जाता है. और इसके अलावा अगर हम टी कंज्यूम deleted from the body. हाँ, it just gets excreted. It's a waste. तो हमारा टी और कॉफी है जो हम खाने के बाद, नाश्ते के बाद जनरली हम पी लेते हैं, उससे हमारा जो डाइट में जो आयरन है वो अब्जॉर्ब नहीं होता है. तो ये हम थोड़े कॉम्बिनेशंस ध्यान रखेंगे तो हमारा आयरन हमारे डाइट में बढ़ सकता है. और एक मैं B12 का शॉर्ट में बताना चाहती हूँ. वेजिटेरियन डाइट बहुत B12 डेफिशिएंट है, तो B12 के लिए हम मिल्क ही है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स, और मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज, योगर्ट, वो सारे हैं. और फोर्टिफाइड, जो बाहर से फोर्टिफाइड सोया मिल्क, फोर्टिफाइड जूसेस, ये सारे हैं. बट वेजिटेरियन डाइट सॉरी, ये B12 डेफिशिएंट है. और ये फोलेट रिच कुछ फूड है जो ये फोलेट रिच फूड है जो हमारा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें बहुत सारा फोलिक एसिड होता है. What would the response to treatment be like? सो रिस्पॉन्स, जो हमारा ट्रीटमेंट टू रिस्पॉन्स है, इमीडिएट हम देख सकते हैं. हमारी एनर्जी अच्छी, हमारा स्किन हेल्दी, हमारा इंप्रूवमेंट इन फोकस है, हमारा एपेटाइट इंप्रूव हो गया है, हमारा जो ओरल अल्सर्स है, जो ओरल प्रॉब्लम्स है वो इंप्रूव हो गए हैं. ये हमारा रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट हम जज कर सकते हैं. हमारा आयरन हम जैसे इंप्रूव करते हैं. So basically a very simple solution to a very common problem, I would say. Yes, very really simple. In our hands, or more so it is in our kitchen. Yes. Just have to go out there and get it. That's it. Yeah, just have to have the right combinations in the right place. Yes. Okay, so now we come to our second topic, which is importance. मैं लास्ट में एक थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के बारे में बस बताना चाहती हूँ, क्योंकि थैलेसीमिया हमारा बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है. 2016 में हमारा जो नेशनल हेल्थ गाइडलाइंस है, उन्होंने यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के लिए अप्रूव किया है थैलेसीमिया के लिए. तो ये हमारा थैलेसीमिया हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूनिवर्सली स्क्रीन हो सकता है. तो हर वुमन इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, ऑल चिल्ड्रन, ऑल प्रेग्नेंट वुमन. और हम जब प्री मैराइटल हम HIV करते हैं, तो प्री मैराइटल हमने थैलेसीमिया स्क्रीनिंग डेफिनेटली करना चाहिए, 100% करना चाहिए, जिससे हम बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं. तो ये थैलेसीमिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें स्क्रीनिंग करना. which is again neglected by most. Neglected, yes. Actually हमें पता ही नहीं है. True. So we start on our next topic, which is myths in breastfeeding. So tell us, what is the importance of breastfeeding, Dr. Shruti Krishnan? So breastfeeding हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी है. मैं इसको बोलना चाहूंगी, एक जर्नी है जो हम करते हैं, और जो मैंने रिसेंटली अभी किया है. तो मुझे उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, जिससे मैंने बहुत सारा सीखा है. उस पर मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया है. तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क लिक्विड गोल्ड है. ये हमारे बेबीज के लिए एक लिक्विड गोल्ड है, जो हमारे बेबीज के लिए न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी, सपोर्ट, लव, ये सब देने का एक तरीका है. तो इसमें बस मैं बहुत डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप रिलैक्स हो, आप हाइड्रेटेड हो, आप कनेक्टेड टू द बेबी हो, तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा रहने वाला है. आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. ठीक है. सो एक मैं कॉमन बस मैं 2-3 स्लाइड्स में डिस्कस करूंगी इसके लिए. तो हमारा डाइट कैसा होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग में. तो वी शुड हैव, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एंड डाइट ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे सोसाइटी में.
मतलब हमें जो डाइट दिया जाता है शुरुआत में एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो वो कितना राइट है कितना रॉन्ग है, मैं आपको आज एक बार शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। ये हमारा डाइट बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें ऑल वेजिटेबल, फ्रूट, होल ग्रेन्स, नट्स, योगर्ट, क्योंकि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, सिर्फ क्या अवॉइड करना चाहती है वो मैं, हो जाएगा। हाँ, ये खाने से कुछ नहीं होगा, हमारा पेट का और ब्रेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क हमारे ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, जो हम खाते हैं उससे जो प्रोटीन्स, विटामिन, कैलोरीज और वो सब एक कन्वर्ट होके ब्रेस्ट मिल्क बनता है। बट कुछ फूड अवॉइड करना चाहिए, बहुत स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, कैफीन इनटेक मत लो, अल्कोहल मत लो, अदरवाइज आप सब खा सकते हो, सब कर सकते हो, बट इन मॉडरेशन। और आप देख लीजिए आपके बेबी को किससे प्रॉब्लम आ रहा है, और हमें खुद डिसाइड करना है हमें क्या करना है। ठीक है, आप बहुत ऑयली मत खाइए, बहुत घी वाला मत खाइए, बहुत शुगरी मत खाइए, इससे हमारा आउटपुट में कोई बदलाव नहीं आना। हमें प्रोटीन की जरूरत है, तो हम प्रोटीन रिच खाएंगे, कैल्शियम रिच खाएंगे, आयरन रिच खाएंगे, जो ये सारा इंक्लूड करेंगे, तो हमारा ब्रेस्ट आउटपुट, ब्रेस्ट मिल्क बहुत इफेक्टिव रह सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ काफी मिथ्स भी हैं। आई वुड लाइक टू जस्ट गो ओवर दोज अ बिट। एक बोलिए तो मत ब्रेस्ट फीड करिए, और एक्सरसाइज मत करिए, ऑल दीज थिंग्स व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग यू शुडंट बी डूइंग। So I'd like you to just talk about that. Yes. Actually, ऐसा है कि हमारा बॉडी ऑटो रेगुलेट करता है टेम्परेचर। तो अगर हम कोल्ड में से भी आते हैं या हम बाल भी धो लेते हैं, तो हमारा ब्रेस्ट मिल्क कोल्ड नहीं हो जाता है, हमारा बॉडी उसको ऑटो रेगुलेट करके वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही देगा। सो ऐसा नहीं है कि हम बाल धो ले तो हमारे बेबी को कोल्ड हो जाएगा, ये आप मत प्रोपोगेट कीजिए। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर हम हमारे मदर्स के लिए एक सपोर्टिव, एक केयरिंग, एक एनकरेजिंग एनवायरनमेंट रखेंगे, तो उनका ब्रेस्ट आउटपुट हमेशा बढ़ने ही वाला है। हम उनको ये मत बोलिए कि आपने ये खाया इसलिए बच्चे को हो गया, आपने ऐसा किया इसलिए बच्चे को ऐसा हो गया। आप एक बहुत ऑसम जॉब कर रहे हैं, आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं, और आप पॉजिटिव वाइब्स बनाई हैं, तो हमारी जर्नी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है पोस्ट ब्रेस्ट फीडिंग। अगर हम एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, तो मतलब लिमिटेड एक्सरसाइज, बहुत ऐसे ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, और हमें ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जो हमारे लिए न्यूट्रल एनवायरनमेंट है, जैसे बहुत हॉट नहीं, बहुत कोल्ड नहीं, बहुत ज्यादा रैप मत करके रहिए, नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहिए, तो आप हाइड्रेशन आपका मेंटेन रहेगा। और एक शॉर्ट नोट ऑन कोविड-19 एंड ब्रेस्ट फीडिंग, या जो हमारा अभी कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, उसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर हमें कोविड-19 है और हम अफेक्टेड है, तो हम ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, बस हमें मास्क यूज करना है, हमें सरफेसेस सैनिटाइज करने हैं, और हमारे हाथ रेगुलरली वॉश करने हैं हम जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे। तो आप ये सब करके आराम से आप आपके बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। सो मैं कंक्लूड, just I will conclude with this 4 important mantras I would like to say. So please do not ignore your health. Have a wholesome, balanced and healthy diet which our ancestors had. So their diet was very wholesome, very good. At least exercise for 20 to 30 minutes, at least 4 days a week, and avoid smoking and drinking, and support, encourage and empower women. So our society will be benefited eventually. थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति, आपने खूब अच्छे से समझाया, एंड सिंस यू जस्ट एक्सपीरियंस द होल प्रोसेस ऑफ मदरहुड, आई थिंक it was very close to what what you spoke about was very close to your heart as well. So thank you so very much. थैंक यू मैम, आपसे इंटरेक्शन करके मुझे बहुत मजा आया आज। Thank you so much. Okay, आज का हमारा सेकंड टॉपिक is also a very important topic for all of us. कैंसर का नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है, पर इसके बारे में अगर पूरी जानकारी हो और शुरुआती स्टेज से ही अगर इसके बारे में पता चल जाए, तो कैंसर को मात देना नामुमकिन नहीं है। कैंसर को लेके कई गलत धारणाएं और गलतफहमियां हम रखते हैं। इन गलतफहमियों का खुलासा करने और कैंसर के बारे में थोड़ी जानकारी हमें देने आज
मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनूप तोष्णीवाल को। Dr. Anup Toshniwal is a medical oncologist. He has done his MD internal medicine from the University of Manipal, Mangalore, and post-graduation in medical oncology from the prestigious Tata Memorial Hospital, Bombay. He is also certified by European Society of Medical Oncology and has been granted a research fellowship by the Australia and Asia Pacific Clinical Oncology Research and Development Department. He has various publications under his belt and has peer-reviewed national and international journals. Last but not the least, he is an MVPM awardee. So I welcome Dr. Anup Toshniwal to take us, to guide us on our journey to know cancer, to know cancer. Welcome, Dr. Anup Toshniwal. Thank you, ma'am. Thanks for that kind introduction and nice introduction. So, आज मेरा टॉपिक है नो कैंसर टू नो कैंसर। सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि एक साधारण व्यक्ति को, यानी कॉमन मैन, जैसे एक हाउसवाइफ है, एक स्टूडेंट है, उसको क्या जरूरत है इस चीज के बारे में जानने के लिए। यानी बहुत सारी चीजें हैं, क्रिप्टो करेंसी है, शेयर मार्केट है, डिफेंस है, पॉलिटिक्स है, लेकिन ठीक है, हमको उसके बारे में पता नहीं, लेकिन ये कैंसर के बारे में पता होना क्यों जरूरी है। सेकंड थिंग इज कैंसर है क्या, सेकंड थिंग उसके टाइप्स क्या है, उसके साइंस सिम्टम्स क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है, और वुमेन्स में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन से हैं और हम उससे कैसे बचे, या उसके बारे में हम कैसे प्रोसीड करें अगर हमारे घर पे है, किसी चीज के से हमको है। अदर कॉमन थिंग इज कि व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कभी कभी न्यूज़पेपर्स में या डिस्कशन में काफी अफवाहें होती है कि ऐसा करने से कैंसर होता है, वैसे करने से कैंसर होता है, दूध पीने से कैंसर होता है, पानी पीने से कैंसर होता है। अपन थोड़ा बात तो उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे कि एक्चुअली इसका कुछ वैलिडेशन है क्या। और फाइनली, सिंस कोविड इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी, कि कोविड के वैक्सीन के बारे में क्या करें, कैंसर पेशेंट ले ना लें, कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्यों जानना जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बहुत राइज हो रहा है इंसिडेंस ऑफ कैंसर। तो ये कुछ पेपर कटिंग है और कुछ साइंटिफिक डेटा है जिसके अंदर दिखाया गया है कि अगले 10 से 20 साल में कैंसर का जो प्रमाण है वो एक डबल से ट्रिपल होने वाला है। अभी यूएस में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूएस इज कैंसर। अभी वहां पे इन्फेक्शियस डिसीज से लोगों की मृत्यु नहीं होती है, या एक्सीडेंट्स या कार्डियोवास्कुलर डिसीज से भी काफी कम हो गए एज कम्पेयर टू कैंसर। तो ये अपकमिंग है कि जो मॉर्टिलिटी बढ़ाने वाला है अगले 10 से 20 साल में। ठीक है, अब ये जो है, ये कुछ ग्राफ्स हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगले 10 साल 20 साल में कैसे कैंसर का बर्डन होने वाला है। सेकेंड थिंग इज कि ये आप देखें कि 0 to 19 ईयर्स या 20 to 30 ईयर्स में 40 ईयर्स में काफी कम है। लेकिन अगर आप वही एज, अगर पेशेंट जो पॉपुलेशन का जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे चाहे वुमेन हो या मेल हो, दोनों के अंदर कैंसर का जो इंसिडेंस है वो काफी बढ़ते जाने वाला है। ठीक है, और कैंसर ऐसा कुछ नहीं है जैसे इन्फेक्शियस डिसीज है कि खराब पानी से पीने से होता है, या फिर ओबेसिटी है जैसे हायर क्लासेस में है कि एक्सरसाइजेस नहीं है, कुछ नहीं है, उसके जैसे हो रहा है बोल के। कैंसर का ऐसा कुछ नहीं कि एक स्पेसिफिक क्लास है, कास्ट है, या कोई ऐसे ये है इसको होता है, ऐसा कुछ नहीं। 1 साल से बच्चे को लेके तो 100 साल की उम्र तक कैंसर हो सकता है। स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों में कैंसर हो सकता है। We're not being able to see the presentation. Okay. So I'll come to the presentation. Arnav, is it visible now? Yeah, now it is. हाँ. So now कैंसर का जो है, जैसे मैं बता रहा था कि ऐसा कोई स्त्री पुरुष या कुछ उम्र नहीं है कि इसमें ही कैंसर होता है, इसमें नहीं होता है, आप इस उम्र को क्रॉस कर जाओ तो कैंसर नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट, हाँ, तो ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज है, जैसे मनोहर पर्रिकर जी जो सीएम थे गोवा के, स्टीव जॉब है, बाकी के फिल्म पर्सनैलिटीज है। तो इतने हाई क्लास लोग, इतने वेल एंडाउड लोगों को भी कैंसर हो सकता है। सेकेंड थिंग है कि क्यों इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पहले से काफी आउटकम्स बेटर होते जा रहे हैं। नए ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया, टारगेटेड थेरेपी हो गया, रेडिएशन के अंदर नए टेक्निक्स हैं, स्क्रीनिंग में नई टेक्निक्स हैं, काफी सारे सपोर्टिव केयर के मेडिसिन बढ़ गए हैं।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अपने को जानना है कि मॉर्टेलिटी और जो मॉर्बिडिटी है, जो तकलीफ होती है कैंसर से, आइदर शारीरिक या फिर जो मृत्यु का प्रमाण है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अर्ली स्टेज में जाते हो किसी भी डॉक्टर के पास में, तो उसका क्योर होने का चांसेस बहुत हाई होता है। तो इसमें मीटिंग द ऑन्कोलॉजी टीम एट राइट टाइम इज वेरी क्रूशियल। ड्यू टू सम रीजन आप लेट भी पहुंचे तो स्टिल वी कैन प्रोलॉन्ग लाइफ, वी कैन गिव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पेशेंट। Time is of crucial importance here. Time is very important. वो जैसे स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम बोलते हैं, उस हिसाब से है। तो बेसिकली चलिए अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, भाई कैंसर है क्या? बहुत तो सुना है, लेकिन है क्या चीज? तो कैंसर इज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिसीज है, यानी एक समूह है डिसीजेस का, जिसके अंदर अपना ही बॉडी का टिश्यू जो होता है, अपना ही सेल होता है, वो भूल जाता है कि कहाँ रेप्लिकेशन रोकना है। यानी अपने जैसे बच्चा होता है छोटा, जब वो बड़ा होता है तो या फिर इसमें रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो एक सेल से आदमी इतना बड़ा बनता है, क्योंकि सेल रेप्लिकेट होते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो उनको पता होता है कि 2 ही हाथ बनाना है, 2 ही आंखें बनाना है, एक ही नाक बनाना है, वो उतना काम करके रुक जाते हैं। कभी कभी ये जो डिटर्मिनेशन होता है, ये होता है जेनेटिक कोड से। एक कोड रहता है, जैसे कंप्यूटर में एक कोड रहता है सॉफ्टवेयर का कि ये कोड है, उसके हिसाब से प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन अगर उसमें कहीं पे एरर आ जाता है तो अपन उसको वायरस बोलते हैं या बग बोलते हैं। वैसा कोई बग आ गया अपने जेनेटिक कोड में, तो वो कैंसर के सेल, जो सेल है नॉर्मल, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे ग्रो एट रैपिड रेट। तो वो 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से फिर वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो नॉर्मल टिश्यू है, जो उस ऑर्गन को है, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वहां से दूसरी जगह पे फैलते हैं। तो बढ़ते भी हैं और दूसरी जगह फैलते भी हैं। जो दूसरा डिस्टेंट ऑर्गन है, लंग का कैंसर ब्रेन में पहुंच सकता है, ब्रेस्ट का कैंसर लीवर में पहुंच सकता है, तो जाके जहां पे भी जो ऑर्गन है वहां पे जाके उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अभी ये टाइप क्या है? ठीक है, अभी कैंसर तो पता चल गया क्या है, लेकिन भाई इसके टाइप्स क्या हैं? तो इसके अंदर मेनली हम जो डिवीजन करते हैं, दैट इज सॉलिड कैंसर्स एंड ब्लड कैंसर्स। तो जो सॉलिड कैंसर्स हैं, यानी जो एक्सक्लूडिंग ब्लड कैंसर, एवरीथिंग अदर इज कंसीडर्ड सॉलिड कैंसर्स। So everything that attacks the organs, basically, every organ in the body. Every organ, cancer can affect any body, any organ in the body. Any organ in the body, yeah. हर organ के cells replicate कर सकते हैं। तो ब्लड का कैंसर जो होता है, इसको हम लिक्विड मानते हैं, यानी ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, मल्टीपल माइलोमा। सॉलिड यानी ब्रेस्ट का कैंसर, लंग का कैंसर, स्टमक, इसोफेगस, ओवरी, सर्विक्स, बक्कल म्यूकोसा, ये सब। ठीक है, अभी पता चल गया क्या टाइप्स है, लेकिन अभी इसके कॉजेस क्या है, क्यों होता है? तो जैसे मैंने बताया था कि जो जेनेटिक कोड है, अगर वही अल्टर हो जाएगा तो फिर जो सेल का काम करने का तरीका है वो बदल जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जेनेटिक म्यूटेशंस, उसको टेक्निकल टर्म्स होता है जेनेटिक म्यूटेशंस, जो कोड चेंज हो जाता है उसको। तो इसकी वजह से कैंसर होता है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्यों? मतलब एग्जैक्टली 40 to 50% लोगों में कभी नहीं पता चलता कि इसको कैंसर क्यों है, इसका जेनेटिक कोड बदला क्यों है। ठीक है, आपने सुना होगा कि कोई कभी सिगरेट नहीं पीता है, दारू नहीं पीता है, या फिर या कुछ नहीं करता, लेकिन उसको भी कैंसर हो गया। हाँ, तो क्यों हो गया? तो एक्चुअली हमको भी नहीं पता कि क्यों हुआ है, लेकिन कभी कभी उसका कॉज पता नहीं चलता, लेकिन इतना पता होता है कि बाबा ये जेनेटिक कोड इसका बदल गया है, इसकी वजह से इसमें कैंसर आ गया। तो अब इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है? तो जैसे बिहेवियरल कॉजेज में जो रहता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिया में है टोबैको चिविंग या स्मोकिंग। फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पे मेलेनिन का प्रमाण कम होता है स्किन में, जो एकदम फेयर स्किन होते हैं, अगर उनको बहुत धूप लगी है सालों तक, 10 साल 5 साल, वो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो डीएनए को जाके डैमेज करता है, उससे मेलेनोमा नाम का कैंसर होता है। तो दैट इज वन कॉज। डाइट में प्रोसेस्ड मीट्स है या रेड मीट है, उसकी वजह से कैंसर होता है। अल्कोहल ड्रिंकिंग, अल्कोहल अब्यूज की वजह से कैंसर होता है। फिर अनसेफ सेक्स, यानी एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी वायरस, ऐसे कुछ वायरसेस है जो ट्रांसमिट होते हैं अनसेफ सेक्स से, जिसकी वजह से होता है। और कुछ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म्स में, ओबेस पीपल हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं, वो लोगों में कैंसर का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अब एनवायरमेंटल कॉजेज में जैसे आपने आजकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, इसकी वजह से ये इसमें से कुछ जो केमिकल्स होते हैं दे आर एक्चुअली क्लासिफाइड एज कार्सिनोजन, जिससे कैंसर हो सकता है या होता है। तो वो एक कारण है। उसके बाद में पहले के जो फर्स्ट जनरेशन ओसी पिल्स होते थे, उसके अंदर कुछ ऐसे ड्रग्स थे जिसकी वजह से कैंसर हो सकता था। फिर कभी कभी पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, या जहाँ पे एटम बॉम्ब या फिर एटॉमिक एनर्जी का एक्सपोजर है, अनसेफ रेडिएशन लेवल्स हैं, उसके वजह से कैंसर हो सकता है। उसमें एक रेडॉन नाम का गैस होता है जिसे नोबल गैस बोलते हैं, उससे उसके एक्सपोजर से भी होता है।
फिर उसके बाद में वायरसेस है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, इप्स्टीन बार वायरस है, कैपोसिस सार्कोमा, ये HIV के पेशेंट में ज्यादा होता है। बैक्टीरिया में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक होता है बैक्टीरिया, जिससे पेट का कैंसर होता है। तो ऐसे क्या तो अभी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैंसर, HPV विल टॉक अबाउट। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो HPV वैक्सीन, जो HPV वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, तो ये सारे कॉज हैं। ठीक है, अभी ठीक है, अपने को पता चल गया है कि क्यों जानना इम्पोर्टेंट है, कैंसर है क्या, उसके टाइप्स क्या हैं, और उसके मतलब कैसे पनपता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स यानी जो रिलेवेंट, प्रैक्टिकली रिलेवेंट है सबके लिए। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ये बात है कि उसके 2 साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। एक नॉन स्पेसिफिक होता है, कौन सा भी कैंसर हो उसके अंदर ये साइन और सिम्टम आ सकता है, यानी थकान महसूस होना, भूख न लगना, वजन कम होना, एक फीलिंग ऑफ अनवेलनेस ऐसा होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो नॉन स्पेसिफिक है, सारे कैंसर में कॉमन है। सेकेंड जो सिम्टम्स का सेट है, ये होता है कि आपका कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करता है। सपोज स्पेसिफिक टू द ऑर्गन, सपोज आपको इसोफेगस का है, अन्न नलिका का है कैंसर, तो फिर निगलने में तकलीफ होना शुरू होती है, पानी नहीं पी जाता है, खाना नहीं जाता है। अगर आपको मुंह का कैंसर है तो अंदर नॉन हीलिंग अल्सर हो जाता है, 2-2, 3-3 महीने तक वो अल्सर हील नहीं होता है। अगर आपको ब्रेस्ट का कैंसर है तो ब्रेस्ट में लंप आएगा, ब्रेस्ट दुखेगा। फिर अगर आपको सर्वाइकल कैंसर है तो ड्यूरिंग पोस्ट पार्टम पोस्ट मेनोपॉज भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, या ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपको जो पेन होता है, डिस्पान्यूरिया कहते हैं जिससे, वो हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो उसके सिम्टम्स आते हैं। तो ये एक मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं, तो CT स्कैन, MRI, एक्सरे, सोनोग्राफी, पेट स्कैन। तो जो ऑर्गन डिपेंडेंट है, जो ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से। अब जैसे ब्लड कैंसर है, उसमें CT स्कैन का इतना कोई रोल नहीं है, वहां पे आपको बोन मैरो एग्जामिनेशन करना पड़ता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट इसके अंदर जो रहते हैं कैंसर में, मेनली 3 सब टाइप होते हैं इसके। एक होता है सर्जरी सॉलिड ऑर्गन्स के लिए, सेकेंड थिंग इज सिस्टमिक थेरेपी, जिसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये 3 आते हैं। और थर्ड थिंग इज की रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन यानी वो रेडिएशन दे के अंदर कैंसर के सेल को डायरेक्टली मार देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है। तो सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे विद MVPM, तो अभी मैं आपको स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। Oh, great. So what are you going to listen is not to scare you, but is to make you aware of yourself. Yes. To learn. To learn. So मैंने जैसे बताया कि these are normal healthy cells. They keep on dividing, and at some point of time वो मर जाते हैं कि वो they know where to stop, where not to divide further. लेकिन कैंसर सेल में ये जो है, जो रेप्लिकेशन है, ये भूल जाते हैं, इनका जेनेटिक कोड बदल चुका है, ये अपने आप ही अनरेगुलेटेड ग्रोथ होता है इनका, uncontrolled. So uncontrolled, unregulated, and they don't know where to keep calm. Where to stop and where not to spread. अभी ये जो है, ये नॉर्मल ब्रेस्ट का एक स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ पे ट्यूमर है, तो जैसे जैसे इसके साइज में बढ़ोतरी होती है, उस हिसाब से उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन in India, and it is also second leading cause of cancer death in women. First is cervical cancer. So this is we are talking about breast cancer. So ये जो है, ये डेवलप कौन से सेल्स में होता है, तो जो जहां से मिल्क प्रोडक्शन होता है, आइदर उस इससे या उसके आजू जो लोब्यूल्स होते हैं उससे होता है। और ये ब्रेस्ट कैंसर जो है, ये ब्रेस्ट से आपके एक्जिला में, यानी जो बगल में है, वहां पे स्प्रेड होता है जनरली फर्स्ट, या फिर स्टर्नम के पीछे, छाती के पीछे में स्प्रेड होता है, और फिर वहां से दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है। तो इट इज प्रोजेक्टेड दैट 1 in 10 वुमेन, यानी हर 10 महिलाओं में से 1 महिला को कैंसर हो सकता है उसके लाइफस्टाइल में। इट्स वेरी स्केरी एक्चुअली। एंड इफ यू फाइंड इन एक्चुअली ये जो नंबर है US में काफी ज्यादा है। और ब्रेस्ट कैंसर इन मेन इज रेयर एज कंपेयर्ड टू वुमेन, but it is a known entity. Now specific to breast cancer, what are the risks? कि ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए रिस्क क्या है? कि फैमिली हिस्ट्री है अगर आपके इसमें,
कि किसी रिश्तेदार को ऑलरेडी आपके घर में ब्रेस्ट कैंसर है या ओवरियन कैंसर है, या आपके घर में कोई कैंसर एक स्पेसिफिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी जीन म्यूटेटेड होते हैं, जो मदर फादर से सिबलिंग यानी बच्चों को पास ऑन हो सकते हैं। पहले कभी अगर रेडिएशन दिया है ड्यू टू सम अदर कैंसर और ड्यू टू सम अदर रीजन, दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। अगर बहुत लेट मेनोपॉज हो रहा है या बहुत अर्ली मेनार्के हो रहा है, बहुत जल्दी अगर मेंसेस किसी के स्टार्ट होते हैं तो इवन दे आर एट रिस्क। एंड अदर इज ओबेसिटी, एंड अगर जितने बच्चे कम होते हैं उतना एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ते जाता है। यानी अगर जो वुमन की शादी नहीं हुई है, जिसको कभी बच्चे नहीं हुए, शी हैज मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर एज कंपेयर्ड जिसको 3-4 किड्स है एंड हु हैज ब्रेस्ट फेड अ लॉट। सो एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो जो श्रुति बता रही थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द बेबी, for yourself as well, of the mother. Yeah. And of course alcohol and smoking, tobacco, they are common to all cancers. They are very controllable cause of है, या harmful और काफी controllable है, right? तो जो स्पेशली रूरल एरिया के फीमेल्स हैं, इनको पता नहीं होता कि क्या साइन एंड सिम्टम है, या फिर साइन एंड सिम्टम्स पता भी होता है तो भी ध्यान नहीं देते हैं, या वो शर्माते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, आगे नहीं आते हैं कि ये ऐसा हो रहा है या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कभी कभी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर मेल इन रूरल एरिया, तो संकोच करते हैं। कभी कभी रिलीजन की वजह से कुछ स्पेशल रिलीजन में ऐसा है कि मेल डॉक्टर्स को नहीं दिखाना है और फीमेल डॉक्टर मिलती नहीं है, तो सालों तक वो वैसा ही अनडिटेक्टेड रह जाता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। अभी आप क्या कर सकते हैं, जनरल पब्लिक क्या कर सकती है स्क्रीनिंग के लिए? स्क्रीनिंग माने कि कुछ होने के पहले, यानी कुछ सिम्टम आने के पहले ही घर पे कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं एक्चुअली कंसल्टिंग द डॉक्टर, या फिर आपको कोई रिस्क फैक्टर है जो मैंने बताया इसमें से, एंड यू वांट टू गो व्हेन यू आर हेल्दी एंड देयर इज नथिंग, आपको कुछ कंप्लेंट्स नहीं है, फिर भी आप डॉक्टर के पास में जाके बता सकते हैं कि हमारे पास रिस्क फैक्टर है एंड वी वांट टू गेट स्क्रीन, यानी मेरे को कुछ होने के पहले छोटा है क्या, स्टेज 1 में स्टेज 2 में देखने के लिए इसको स्क्रीनिंग माना जाता है। तो उसके अंदर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है जो आप घर पे कर सकते हैं, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है जो डॉक्टर करता है क्लिनिक में, मैमोग्राफी एक स्पेशल टाइप का एक्सरे होता है, उसको हम मैमोग्राफी बोलते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी जो अपन रूटीनली प्रेगनेंसी में होता है, वैसा ब्रेस्ट का भी अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। तो ये जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है आप घर पे कर सकते हैं। आइडियली ये जो करना होता है ये 3 to 5 days आफ्टर योर पीरियड्स हैव स्टार्टेड, एंड इसके अंदर ये देखना चाहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई पेनलेस लंप नहीं है। जैसे अभी आप ये जो लंप है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्चुअली उतना अच्छा क्वालिटी का इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये एरिया में जस्ट अबव द निप्पल इन दिस एरिया यहाँ पे प्रोट्रूजन है। तो ये जो लंप है ये थोड़ा अबनॉर्मल है, ये सस्पिशियस हो जाता है। सेकेंड थिंग इज कि अगर ब्रेस्ट के साइज में या शेप में या उनके सिमेट्री में कुछ फर्क आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो एन अलार्मिंग साइन। सेकेंड थिंग इज कि ब्रेस्ट एंड एक्जिला दे हैव इनसेपरेबल कनेक्शंस। यहाँ पे कनेक्शन होते हैं जो ब्रेस्ट के सारे लिम्फ में होता है, ब्लड का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है जो ब्रेस्ट से उसका पूरा एक्जिला में जाता है। तो अगर आपके एक्जिला में लेट्स जस्ट क्लैरिफाई, एक्जिला इज द एरिया अंडर द आर्मपिट। तो इस आर्मपिट एरिया में भी अगर कोई स्वेलिंग आता है तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, यू शुड नॉट नेग्लेक्ट इट। समटाइम्स ब्रेस्ट में कुछ नहीं होता है या ब्रेस्ट का साइज बहुत बड़ा होता है तो पिकअप नहीं होता है, जो डीप रीजन से आर्मपिट में समझ में आ जाता है। अनदर थिंग इज कि निप्पल रिट्रैक्शन हो जाता है कभी कभी अबनॉर्मल, यानी it is not that all nipple retraction are cause of cancer or it is sign of cancer। कुछ nipple retraction नॉर्मल भी होते हैं जो क्लिनिकली वो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अगर पर्सिस्टेंट है, स्कारिंग है वहां पे, तो दैट इज वन ऑफ साइन। देन ब्लडी डिस्चार्ज, यानी खून निकलता है कभी कभी निपल से, तो दैट इज आल्सो एन अलार्मिंग साइन। यू शुड गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। देन स्किन है ऊपर का ब्रेस्ट के, उसमें डिम्पलिंग होता है, छोटे छोटे डिम्पल्स आते हैं या उसमें पकरिंग होता है। जैसे ऑरेंज के ऊपर एक छोटे छोटे जैसे ये रहते हैं पकरिंग बोलते हैं उसको, वैसा अगर हो गया उसको हम पाव द ऑरेंज अपीयरेंस बोलते हैं। अगर वैसा है तो दैट इज आल्सो एन अलार्मिंग साइन। और जनरली जो ब्रेस्ट पेन है इसमें जनरली नहीं होता है, अगर साइज बहुत बड़ा है
तो ही होता है कैंसर Otherwise, में। it's always, I mean, almost always painless. Almost painless. Yeah. Yeah. Yes. So now how to do self breast examination at home? So इसमें जो है आप अनड्रेस करके आपके मिरर के सामने जाके फर्स्ट इंस्पेक्ट कीजिए खुद को कि दोनों ब्रेस्ट जो है सिमेट्रिकल हैं क्या, दोनों में कुछ यानी एग्जैक्टली सेम या सिमिलर दिख रहे हैं क्या, या थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर बहुत वेरिएशन है, एक ब्रेस्ट थोड़ा ऊपर आ गया है या नीचे आ गया है या उसमें स्वेलिंग आ गई है, तो आपको थोड़ा सस्पिशियस हो जाना चाहिए उस बारे में। सेकंड थिंग है कि हाथ ऊपर करके देखना है एक्सिला में और ब्रेस्ट में कि कुछ स्वेलिंग तो नहीं है और सिमेट्री मेंटेन कर रही है कि नहीं। और थर्ड थिंग है कि आप अपने जैसे यहाँ पे दिखा है अपने हिप पे हाथ रख के फिर देखना है कि और कोई स्वेलिंग प्रोमिनेंट नहीं होती। ये जो डिफरेंट पोस्चर्स हैं इसलिए है क्योंकि इससे मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्किन कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होती है, तो इसका साइंटिफिक कुछ रीजन है, इसलिए ऐसे पोजीशन नहीं करते हैं उसको। फिर जो है सेम हाथ से सेम ब्रेस्ट एग्जामिन ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। आपको राइट ब्रेस्ट एग्जामिन करना है तो अपने लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, और लेफ्ट ब्रेस्ट करना है तो राइट हैंड से कर सकते हैं। आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम द पेरिफेरी, आप पेरिफेरी से सेंटर में जाइए या सेंटर से पेरिफेरी जाइए, ऐसे सर्कुलर मोशन बनाते हुए देखने के लिए कि कोई लंप तो नहीं लग रहा है बोल के। महीने में से जैसे मैंने बताया कि पोस्ट मेंसेस आप 3 to 5 days आफ्टर दैट यू कैन डू once a month easily at your home in your own, like with maintaining your own privacy. ठीक है। ये सोने के बाद की पोजीशन है कि लेटे लेटे आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं आर्मपिट में और आपके लोअर क्वाड्रेंट यानी नीचे के साइड ब्रेस्ट में। और अगर ऐसा लगता है कि निप्पल में डिस्चार्ज आ रहा है या ऐसे थोड़ा हेवीनेस लग रहा है तो आप थोड़ा जेंटली स्क्वीज कर सकते हैं निप्पल को चेकने के लिए कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। तो जैसे ये लेफ्ट साइड का किया है वैसे आप राइट साइड का भी कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ सब टाइप्स ऑफ कैंसर है जिसमें रेयर होते हैं। ये सब साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में आपको डायरेक्टली पिक्चर दिखाता हूँ कि ये काफी रेडनेस है, वार्मथ है, यहाँ पे गर्म लगता है, टच करने पे दुखता है, तो एक रेयर सब टाइप ऑफ कैंसर है, ये पेनफुल होता है। तो नॉट ऑल कैंसर लम्प्स आर पेनलेस, सम माइट बी पेनफुल आल्सो। ठीक है। सो नाउ वी हैव कम टू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज डन बाय डॉक्टर. So I think that is out of purview of our discussion over here. Right. But I would like to ask one thing here is how often should one get a mammogram done just as a preventive screening? So ma'am, I'll come to that later. मैं आता हूँ अब उसके बारे में। ठीक है। ये एक मैमोग्राम है, यानी जस्ट आपको मैंने एक सैंपल उसके फिल्म्स दिखाए हैं कि कैसा होता है। तो ये नॉर्मल मैमोग्राम है। ये हर लंप जो है वो कैंसर नहीं होता है, कुछ बेनाइन सिस्ट भी होते हैं, फाइब्रोइडोमास होते हैं। तो ये वन ऑफ उसका एक एग्जांपल है कि फाइब्रोइडोमा कैसा दिखता है हमको एक्चुअली मैमोग्राम पे। और ये कैंसर का स्लाइड है कि इसमें कैंसर कैसे दिखता है। ठीक है। तो इसके अभी जो अपना ये था कि एक्चुअली स्क्रीनिंग कब से शुरू करना चाहिए और मैमोग्राफी के बारे में क्या है। तो 20 to 40 years ऑफ एज, इसके अंदर अपन जनरली रिकमेंड करते हैं कि यू डू once a month सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड एवरी 3 years क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप करते हैं, 3 साल में एक बार भी क्लिनिक डॉक्टर से चेक करा लिया तो वेल एंड गुड। आफ्टर 40 years इट इज रिकमेंडेड टू गेट एनुअल क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर एंड एनुअल मैमोग्राम। तो इसमें गाइडलाइंस में काफी डिफरेंसेस हैं। अगर 3 साल आप करते हो और बाद में अगर हर बार नेगेटिव आता है तो somebody recommends कि आफ्टर अल्टरनेट ईयर या एवरी 3 years करना चाहिए। तो थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेकिन 40 year we have to get it done. And most important is कि अवेयरनेस होना चाहिए कि what are the signs and symptoms, तो आप जाके डॉक्टर को बता सकते हैं। और जिनकी फैमिली में जैसे ये जो ग्रेटर देन 25% रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जिसको बोलते हैं, तो कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि 2-3 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी मैमोग्राफी में पिकअप नहीं होता है तो उनके लिए MRI करना पड़ता है ईयरली आफ्टर द एज ऑफ 35 years. So that is a special subset of patients. And these are some myths about breast cancer. कि वुमन जिसके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है उनके घर में होगा, बाकी के लोगों को होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 70% of women who are diagnosed with breast cancer they have no identifiable risk factors, which is again so scary. Yes. So ऐसा कुछ, yeah, it is. That's why it's very scary. I mean, we can't just say कि we don't have a family history, so there is no risk. Yeah. So actually,
what some people from our fraternity have suggested is कि ये स्कूल में या कॉलेज में 11th 12th में irrespective of कॉमर्स से हो या साइंस से हो या आर्ट से हो एटलीस्ट ये आपके सिलेबस में आना चाहिए so that ना all women are all sensitized women at school should level know or about college. this. True, Yes, true, yes, yes. perfect. So yeah, then ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लंप आया है तो कैंसर ही है, अब हे भगवान अब क्या होगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं है. 80% ऑफ ब्रेस्ट लेंस आर एक्चुअली बेनाइन, तो इट्स नॉट दैट स्केरी कि भाई हर अब लंप आ गया तो अभी मेरा तो कुछ नहीं होने वाला उससे. एंड ऐसा सेकंड थिंग है कि अगर कैंसर डिटेक्ट भी हो जाता है तो ऐसा नहीं कि इट इज इनक्योरेबल कि अभी तो अपना तो बैंड बच गया. No, these are treatable. So I mean, yes, it is treatable when we detected early. Right. फिर वो जो मैंने बताया था आपको कि सिर्फ वुमन में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है. रेयरली मेन में भी हो सकता है. फिर स्मॉल जिसके ब्रेस्ट स्मॉल होते हैं तो चांसेस कम होते हैं. Very rarely, but it does happen. Yeah, in males also. एंड जो स्मॉल ब्रेस्ट है उससे लेस चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के. किसी के साइज बहुत बड़े हैं ब्रेस्ट के उससे ज्यादा होता है. ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है उसके अंदर. और हर हमेशा लंप में ही आता है ब्रेस्ट कैंसर, उसका पहले गांठ ही बनना चाहिए, उसके बाद में ही कैंसर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, उसका स्टार्टिंग अलग होता है. तो या कभी कभी आपके ब्रेस्ट में कुछ नहीं रहेगा लेकिन आपके आर्म पिट के अंदर कुछ स्वेलिंग आ जाएगी. समटाइम्स दैट गिव्स यू द फील. ठीक है. फिर ज्यादा चाय कॉफी पीने से तो नहीं होता है, या फिर पेप्सी कोला जिसमें कैफीन होता है उससे होता है क्या, तो उससे नहीं होता है. कैफीन डज नॉट कॉज एनी रिस्क फॉर, इट इज नॉट अ रिस्क. Use of deodorants, that is also one thing. So, use of perfumes and deodorants causes cancer, causes breast cancer. Yeah. तो ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स जो एकदम इंफीरियर क्वालिटी के लोकल है उसके अंदर अगर बेंजीन है या कुछ पॉलीहाइड्रोकार्बन्स है, ऐसे कुछ अगर उसके अंदर क्या बोलते हैं अडल्ट्रेंट्स हैं, तो that might, but the nobody can quantify what is the risk and nobody know exactly कि उसमें है या नहीं है. So it is better to if you spray your clothes direct rather than using directly on the skin. And annual mammograph करने से उसमें भी तो रेडिएशन होता है, हम एक्सरे कराएंगे या मैमोग्राफ कराएंगे तो उससे भी तो रिस्क होता है. तो अगर आप उससे इम्पैक्ट तो बहुत कम रिस्क होता है, लेकिन अगर आप क्रिस क्रॉस करके उसको कंपेयर करके देखो, उसका रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करके देखो, तो बेनिफिट far outweighs the risk. That's why we recommend get a mammogram, annual mammogram after the age of 40. Right. ठीक है. फिर ये जो है मैंने जो पहले बता चुका हूँ कि डेथ रेट्स आर कमिंग डाउन एंड स्क्रीनिंग हैज एक्चुअली इंप्रूव्ड डिटेक्शन ऑफ कैंसर इन अर्ली स्टेजेस. ठीक है. Basically early prevention, and that is the key basically. Yeah. And what we can do at home is we reduce your weight. As a community, we all know the obesity incidence is going high in our community specifically. तो आपको weight control में रखना है, आपका BMI control में रखना है, आपको exercise अच्छे से करनी है, आपको बैलेंस डाइट लेना है, ज्यादा रेड मीट प्रोसेस मीट या बहुत ओबेसिटी से हो सकती है, हाई शुगर, हाई मैदे वाली, हाई सॉल्ट, ये सारी चीजें नहीं लेना है. नॉट ड्यू टू कैंसर ओनली, आल्सो फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट के हेल्थ के लिए, और आपको स्ट्रोक ना हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ना हो, किडनी का प्रॉब्लम ना हो. इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या हो रहा है कि ड्यू टू सम कल्चरल प्रैक्टिस इन द वेस्ट, जनरली अपना ऐसा होता है कि जो वेस्ट में हो रहा है वो अच्छा है, अपन उसको फॉलो करेंगे. यहाँ पे this is something they should copy from us. Yeah, they should copy from us. Breastfeeding is very important for the baby and for the mother. So please don't shy away from the breastfeeding, या फिर आप कम कट ना करें. ठीक है. Of course, alcohol, avoid smoking and avoid everything else, smoking and tobacco chewing. Okay. So we let's go to cervical cancer. So मैं थोड़ा I think we are running behind the time, so I just bit of we'll have to pick up. Yeah. So 1 out of 4 women who die due to cancer die due to cervical cancer. यानी 25%. That's very alarming. Yeah. So to 25% of women who are suffering from who die from cancer is because of cervical cancer. So what is cervix basically? तो ये जो है this is female genital apparatus. ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये जो है ये सर्विक्स है, और ये वजाइनल कैनल है. तो सर्विक्स जो है इट कम्स एट द जंक्शन ऑफ द यूट्रस, इसको गर्भाशय है और वजाइना.
तो ये जो सर्विक्स है उसको मराठी में वो बोलते हैं कि गर्भपिशीचा मुख, ऐसा इसको बोलते हैं। उसका कोई अप्रोप्रिएट टर्म नहीं है जो मराठी में मुझे मिला अब तक, तो यही बोलते हैं उसको। तो दिस एरिया इज कॉल्ड सर्विक्स। नाउ it occur, of course, cervix exclusive of this cancer is exclusive to women and थोड़ा साइज का प्रॉब्लम है। तो इससे बेसिकली सिम्टम्स क्या हैं? तो अनयूजुअल डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, या फिर इंटर ड्यूरिंग बिटवीन इन बिटवीन द पीरियड्स स्पॉटिंग होता है, तो या फिर आपका मेनोपॉज हो गया है और 2 years 5 years 10 years down the line you again starting spotting होने लगता है, तो डिस्पान्यूरिया यानी ब्लीडिंग और पेन ड्यूरिंग सेक्स। फिर अदर प्रॉब्लम्स में जैसे अगर आपको यूरिनरी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, या नेक्स्ट वेट लॉस हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। हाँ, तो इसके कॉजेस क्या है? तो जैसे अभी कोरोना वैक्सीन, सबको पता है कि कोरोना वैक्सीन क्या है, सॉरी कोरोना वायरस क्या है। This is HPV. So this is main culprit of cervical cancer. So it is human papilloma virus, and 80% of women will be infected with HPV in their lifetime. यानी out of 100 women, 80% will have this HPV infection, but not all of them will turn into cancer. No, not all of them will turn into cancer. HPV infection होना है 80% महिलाओं को, लेकिन सब कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन होता है। हाँ, तो इसके रिस्क फैक्टर क्या है? एचपीवी फैलता कैसा है? तो बेसिकली एचपीवी जो है इट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में माना जाता है इसको, यानी ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है इसका फ्रॉम मेल पार्टनर टू फीमेल और फ्रॉम फीमेल टू मेल और फ्रॉम मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल। एंड इसका रिस्क फैक्टर जो है कि एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर है, फिर उसके अलावा अगर आपको एचपीवी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ये सब उसके रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, आई जस्ट स्पीड इट अप। और आपको क्या करना चाहिए कि जिससे सर्वाइकल कैंसर ना हो? तो जो मैंने सब पहले बताया था कि टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल और जो अदर फॉर्म्स ऑफ टोबैको यूज है वो नहीं करना चाहिए। आपको एचपीवी वैक्सीनेशन लेना होगा टू प्रिवेंट एचपीवी इन्फेक्शन। और उसके बाद में अगर एचपीवी इन्फेक्शन हो भी चुका है या आपने वैक्सीन नहीं भी लिया है या आपने लिया भी है, तो आपको पैप टेस्ट करना चाहिए। पैप टेस्ट क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको। तो पैप स्मीयर जो है बेसिकली उसको क्या करते हैं कि दिस इज सर्विक्स, ये जो है राउंड स्ट्रक्चर ये सर्विक्स है। तो उसके अंदर हम एक स्पैचुला डाल के उसको विजुलाइज करते हैं और वी पुट अ स्मॉल ब्रिसल इनटू दैट, एंड उससे हम उसका स्क्रेपिंग लेते हैं, उसके सेल्स लेते हैं, इसको अपन स्लाइड में डिपॉजिट करते हैं और माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। तो इसको स्लाइड में डिपॉजिट कर दिया और ये ऐसे माइक्रोस्कोप में दिखा। It's quite a painless procedure. Yeah, it's a painless procedure. It's a OPD procedure. आपको कुछ एडमिशन का जरूरत नहीं पड़ता है. Which is what women need to know because वो इतना मतलब उससे इतना डर जाते हैं कि वो कराना ही नहीं चाहते हैं. It's fairly simple and very painless. Yeah. And so it's OPD procedure. And it is commonly available. ऐसा नहीं है कि इसको कुछ बहुत हाई एंड मशीन लगता है या फिर ऐसे सिर्फ मुंबई पुणे में होगा, औरंगाबाद नासिक में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल गायनेकोलॉजिस्ट आर वेल वर्स्ड हाउ टू टेक पैप स्मीयर्स एंड हाउ टू रिपोर्ट इट। और ये है कि ऐसे माइक्रोस्कोप में दिखते हैं तो ये सेल्स, तो ये बेसिकली ये जो है थोड़ा कैंसरस सस्पिशियस सेल्स है। अगर पैप स्मीयर में अगर सस्पिशन होता है कैंसर का, तो we need to further evaluate. अगर पैप स्मीयर आपका नॉर्मल आता है तो no need to panic, you can go home, you are healthy enough. तो how often यानी कब से शुरू करना है, at what age, and आपको कितना बार पैप स्मीयर करना चाहिए? तो every year करना चाहिए after the age of 30. Okay. और अगर आपका पैप स्मीयर 2 से 3 बार लगातार नॉर्मल आता है और आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपको एचपीवी वैक्सीन दे चुके हैं, जो सेक्सुअल पार्टनर्स 1 या 2 है उससे ज्यादा नहीं है, एंड यू नो कि योर हिस्ट्री ऑफ योर सेक्सुअल पार्टनर्स आल्सो दे आर नॉट प्रोमिस्कुअस, देन यू कैन डू एवरी 3rd ईयर आल्सो। इट्स नॉट दैट एवरी ईयर यू हैव टू गेट इट डन। ठीक है। और जो प्रिवेंशन, हाउ वी प्रिवेंट एचपीवी वायरस इन्फेक्शन इज वी हैव अ वेरी गुड वैक्सीन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन, गार्डासिल और कोवैक्स, सर्वारिक्स एंड गार्डासिल के अंदर एक और सबटाइप आता है जो 9। अभी ये एचपीवी वैक्सीनेशन देना किसको है, यानी फ्रॉम व्हाट एज वी शुड गेट इट, व्हाट इज इट रिकमेंडेड? So it is recommended at age of 11 to 12 years. We can give as early as 9 years also,
and up to 26 years. तो इसका basic फंडा ये है कि the woman should get vaccinated before the first sexual encounter. Right. So that is what this ये So जो that is the guidelines main criteria. Basically, it has to be Yes. done before the first the sexual. first sexual encounter. So Right. 11 to 12 years, what is being recommended nowadays. Right. And after like we can give still after marriage के बाद में first sexual encounter के बाद में भी दे सकते हैं वैक्सीन, लेकिन कितना इफेक्टिव होगा पता नहीं. So there's no तो harm ऐसा in नहीं giving है it कि- later on, but how Yes, the yes. effectiveness will. This is we don't know. And sometimes questionable. उसके अंदर strains होते हैं 16, 18, 31, 33, 9, 6. So आपको एक स्ट्रेन का इन्फेक्शन हुआ होगा, Right. लेकिन आपको अगर एचपी वैक्सीन 9 स्ट्रेन के खिलाफ दिया जा रहा है तो यू कैन बी सेव्ड बाय अदर 8 स्ट्रेन्स आल्सो. ठीक है. तो और इट कैन बी गिवन अप टू एक्चुअली 60-63 years, but beyond that also you can take, but how effective How it will be, that is effective, debatable. yeah, true. That is debatable. True. ठीक है. फिर अभी देते जैसे हैं तो एक्चुअली दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से कंपनी का वैक्सीन है, उसका स्ट्रेन्स कितने हैं, बट जनरली शेड्यूल इज 0, 1, 6 months. एंड दिस डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर जिनको एचआईवी इंफेक्शन है या जिनका ट्रांसप्लांट हो रहा है या जो कीमोथेरेपी पे हैं, ये इनके लिए थोड़ा अलग शेड्यूल है. लेकिन जनरल जो कॉमन पब्लिक है उनके लिए 0, 1 month to 2 months and 6 months. यानी पहला मैं आज लिया, एक या 2 महीने बाद लिया और 6 महीने बाद लिया. 3 डोसेस लेना चाहिए. 3 doses. HPV वैक्सीन. Alright. Okay. तो इसमें ऐसा है कि जैसे मैं बोल रहा था कि जो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का है ये एट द 10th में ही कर देना चाहिए, 11th में कर देना चाहिए. जैसे एचपीवी वैक्सीनेशन भी एक्चुअली जब 11-12 इयर्स के होते हैं तो 5th-6th स्टैंडर्ड रफली, तो उसी टाइम पे एक्चुअली एट स्कूल लेवल कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा. Yeah. बट फॉरेन कंट्रीज दे फॉलो दिस pattern, But I think it hasn't really started very. I mean, it isn't as prevalent in India as much. Yes, I mean, yes, giving yes, the sir. vaccine isn't as prevalent in India. एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में है, लेकिन ऐसे कंपल्सरी यानी It's not compulsory वैक्सीनेशन. yet. हाँ, Right, यूनिवर्सल right. वैक्सीनेशन Not like the other vaccines that we've gotten. as and kids, and Indian Academy of Pediatrics जो है IAP जो है pediatricians का बॉडी, they recommend giving HPV vaccination. ठीक है. सो इसमें ये है कि हाउ टू बी फ्री फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द प्रिवेंटेबल कैंसर्स. कि आप वैक्सीन लो, आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के. सो गेट वैक्सीनेटेड अर्ली and start pap smear maybe at the age of 21 years and after every 3rd year. And and keep on continuing it. ठीक है. और इसमें पेयर का टेस्टिंग का कंसेप्ट रहता है कि मदर और डॉटर आती है, तो डॉटर जो है उसका हम एक्टिव वैक्सीनेशन करते हैं और जो मदर है उसका अपन सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग करते हैं, पैप स्मीयर करते हैं. तो आप ईयरली डेट डिसाइड कर सकते हैं कि जिसके अंदर आप आपका ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग करा सकते हैं और पैप स्मीयर का स्क्रीनिंग. Right. So from my side, happy International Women's Day to all. And अगर कुछ questions हैं, yeah, there are a few questions. I'll just read them through. One question is that what stage does cancer turn to be non-treatable or not salvageable? हाँ. Okay. So general definition is stage 4. But कैसा है कि जैसे मैंने बताया कि कैंसर इज नॉट वन डिसीज, इट इज ग्रुप ऑफ डिसीज. सो इट इज एवरीथिंग व्हाट आई से हैड सम कैविएट्स, यानी हर चीज को एक्सेप्शंस रहेंगे. तो जनरली स्टेज 4 के कैंसर को हम ऐसा मानते हैं कि इट इज इनक्योरेबल. यानी उसका क्योर नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इट इज स्टिल कंट्रोलेबल. तो ऐसा है कि स्टेज 4 है, अभी हॉस्पिटल में जाके कोई मतलब नहीं है, ट्रीटमेंट क्यों करा रहे हैं, ऐसा नहीं है. इट इज स्टिल कंट्रोलेबल. Okay, so the next question is for women suffering with ulcerative colitis, what type of cancers are they more susceptible to, and what is the cancer screening protocol to be followed and from what age? Okay. So ulcerative colitis के लिए जो है उनके लिए कोलोन कैंसर का रिस्क हाई रहता है. They have something called association of Lynch syndrome also. So that is main thing for them, and the screening is by colonoscopy, and generally that is started around 30-35 years,
एंड एनुअल स्क्रीनिंग करते हैं. सम बॉडीज रिकमेंड 6 मंथली आल्सो, 2 ईयरली आल्सो. So there is lot of debate कि कोलोनोस्कोपी करने से कितना फायदा होता है, but that's a very specific subset of patients. So that need to be discussed on case to case basis, to be taken account with the treating gastroenterologist also. Right, right. So basically, the gastroenterologist with the oncologist will concur and decide what needs to be done. All right. Okay. And Manu uncle has asked, how accurate is the test? In the sense, how accurate is the Pap smear? I think he's asking about the Pap smear test. Yeah. It's very accurate. There are different methods of doing Pap smear. जैसे Pap smear है, उसमें acetic acid testing है, उसके साथ में core testing पर HPV है. So if you take the method, then the efficiency varies as per the method you use, but it is considered around 93 to 99% sensitive and specific. So उसमें something we call it sensitivity and specificity and positive predictive value and negative predictive value. So it depends. It totally varies upon what method you are using. But you would say about 90 to 95%. More than 90. Yes, more yes, than yes. 90. More So which is 90%. which is it is very accurate. Yeah. And it is very cheap. It's not very costing anywhere. Right. Okay. Well, what are the views or scope on drug development for cancer, especially in terms of prostate and ovarian cancer? Have we started its implementation in India, and your views on Rubraca medication from Clovis Oncology deployed in US and EU? Okay, so I'm thinking this is a doctor who has asked this. Yeah. So there are a lot of drugs which are coming in. Just conventionally, we used to give cytotoxic chemotherapy, paclitaxel, carboplatin, gemcitabine. Yeah. I think there's some network issue with Dr. Toshniwal. Yeah, seems like. Yeah. Dr. Toshniwal, you're frozen. Hello, am I audible? Yeah. Now it's okay. Yeah. So basically, that is more of medical. Yeah. So there's more of medical answers. So immunotherapy is in. Then targeted therapy में है BRC mutations और HRD mutations के लिए हम olaparib, talazoparib, niraparib ऐसे drugs आ रहे हैं. And NTR के fusions के लिए नए drugs हैं. So there is lot of development happening in systemic therapy. Surgical side के तरफ it is what new is HIPEC, that is high dose intraperitoneal chemotherapy. हम जो जनरली कीमोथेरेपी देते हैं इसको इंट्रावेनस देते हैं, नसों के द्वारा देते हैं जो पूरे शरीर में जाए, तो वो देते ही हैं. लेकिन ऑपरेशन के टाइम पे जब आप एब्डोमेन ओपन करते हो कैंसर निकालने के लिए, तो डायरेक्टली वो पेट में ही कीमोथेरेपी दे देते हैं, यानी कि पेट में ही कीमोथेरेपी रखते हैं 1-2 घंटे के लिए और उसको निकाल देते हैं. So that is which is HIPEC उसको बोलते हैं. So that is something which is new. So that is new, isn't it? Yeah, 2 to 3. So 10 साल से हो रहा है, but commercially, not for the common patients. For in Maharashtra, anyway in Marathwada, where I'm practicing, it is now available. HIPEC is now available to everyone. Okay. And immunotherapy, targeted therapy is also available in India. In small place like Hingoli, I am giving immunotherapy. In Aurangabad, I have at least 4 to 5 patients who are immunotherapy. So there is a lot of things which are happening. Right. I mean, there is something new that is innovated every day, and I'm sure there is so much scope, and this is such a widespread disease that anything that can be done should be done. Yes. Right? Okay. Do you recommend any home remedies for treatment of cancer along with the clinical treatment? Generally, what happens is when we recommend, we need a very good proof, quality of proof. Very strong studies to recommend something strongly. Right. Now, home remedies has it's a very vague word. आपका जो home remedy है वो US में it could be different from mine, right? आपके घर में मेरे घर में अलग रहेगा. अफ्रीका में एक जो घर है उसका home remedy अलग रहेगा. चाइनीज का home remedy अलग रहेगा. So what home remedy are you going to use? That has to be specified. But generally, what is found is कि जैसे I give a common example to patients कि आपके गाड़ी का अगर लाइट खराब हो गया तो आप वो टाकी में डीजल डालो या पेट्रोल डालो या पानी डालो, वो लाइट कुछ अच्छा होने वाला नहीं है. तो इतना इंट्रिकेट रिलेशनशिप नहीं होता है आपके डाइट में या आपके जो होम रेमेडीज है उसके अंदर और कैंसर. And
a hysterectomy has been done on a patient, then what are the chances of breast cancer? So hysterectomy and breast cancer per se don't have any relationship. Correlation. Hysterectomy यानी आपका जो patient का uterus निकाल दिया है, और breast cancer is it is breast they don't have any relationship. अगर ओवरी निकल चुकी है तो it's difficult to say कि रिस्क कैसा है. There are a lot of factors we need to weigh in. यानी फैमिली हिस्ट्री है क्या, उसका नलीपैर स्टेटस है क्या, ब्रेस्ट फीडिंग का स्टेटस क्या है, and it is actually very debatable. I cannot give a very specific and accurate answer to that question. Accurate answer. So there's another question after menopause. So it's pretty much the same thing. Even after menopause, it'll be the same thing, right? I mean, hysterectomy. I mean, the same answer would hold true for after menopause as well. Yeah. Right? No. The risk is maximum at 40 years to 70 years for breast cancer. Right. Okay. And how about getting breast cancer treatment with drugs only? Is that possible? Where no radiation is involved? Is that possible? No, that also depends upon कि आपके breast cancer का stage कौन सा है. Stage कौन सा? और stage कौन सा है, आपको सर्जरी कौन सा हुआ है पेशेंट का. यानी breast cancer की सर्जरी हुआ है तो रेडिएशन देना पड़ता है. अगर मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी यानी पूरा ब्रेस्ट ही निकाल दिया है, जनरली रेडिएशन का रोल नहीं रहता है. उसमें भी कुछ रिस्क फैक्टर देखने पड़ते हैं कि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है क्या, लिम्फ नोड में जो यहाँ पे आर्मपिट में जो स्वेलिंग है वो फूट तो नहीं गई थी. अगर वो फूट गई तो रेडिएशन देना ही पड़ता है. तो दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन. डिपेंड वो पेशेंट का स्टेजिंग और उसका रिस्क स्टेटस देख के ही बता सकते हैं कि रेडिएशन का रोल है या नहीं. I think we've pretty much taken all questions from the chat box here. If anybody else wants to ask, you are free to ask them. Please unmute yourselves and ask Dr. Toshniwal and Dr. Shruti Toshniwal your questions, please. Everything that's here on the chat box I have asked. A question from me. Yes. Wanted to know, please, would you be able to enumerate carcinogenic utensils or food items that we can avoid at home? So generally, what happened? So sure. You know, so this is also again, I'm sure all women definitely must be having this, because there's a whole lot of data out there कि भाई इसमें बनाने से कैंसर हो सकता है, एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाने से कैंसर हो सकता है. So this is a very pertinent question, and I think that's my sister asking that one. So what I suggest is, first 2 things I need to tell you. WhatsApp पे और YouTube पे जो बोलते हैं ना, 50 to 60% is nonsense. Okay. So please don't read something and make your opinion regarding something by taking knowledge from there. If you want some specific sites अच्छा जहाँ से आपको information मिल सकता है, up to date नाम का एक site है, उसमें patient का section होता है. Second thing is NCCN, National Comprehensive Cancer Network. ये US का guidelines का जो है national body है, वहाँ पे patient का section होता है. There you can find authentic information. Now, can you repeat the name again, please? Yeah, it is up to date. uptodate.com. Okay. Then you can go into patient section. अगर आप डॉक्टर के सेक्शन में जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा. Second thing is कि NCCN, National Comprehensive Cancer Network. So you can put just NCCN cancer guidelines. So you will get lot of information about cancer there, which is very authentic. Which is going to be far different from WhatsApp University. Definitely, and it is reliable. Yeah. Okay. And that is written and moderated by doctors for the patient in a language that patient can understand, the general public can understand. Right. And other thing what she asked is what specifically. So it's very difficult to give particular answers, but I'll tell you processed meats, red meat, and in general foods which promote obesity. And you should absolutely not have obesity. Okay. And fourth thing is ये से कुछ हो सकता है वेजिटेबल. डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन था. हेलो. हाँ बोलिए मैडम. After 60 age
is it compulsory to do pap smear every year? It has to be done, madam, till the age of around 70 years at least. Pap smear करना ही चाहिए. HPV वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन you should get pap smear. Yes, you should get it done Every year. Okay. Thank you. Yes. Do And you have other thing any I other want to question? tell, what I forgot is, I'll just meanwhile I'll just interject you कि Yeah. कोविड जो है, कोविड वैक्सीन ले सकते हैं सिर्फ 2 लोगों के लिए जो कैंसर के ट्रीटमेंट पे फिलहाल है वो नहीं ले सकते. जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है रिसेंटली, उनको 3 मंथ डिफर करना है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है. जिनको CAR-T सेल का थेरेपी चल रहा है जो इंडिया में एक्चुअली अवेलेबल नहीं है. तो ये 2 पेशेंट को छोड़ के कैंसर का हर कोई मरीज ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन ले सकता है. और सर्जरी अगर किसी का हुआ है तो डिस्कस विद योर सर्जन वेयर यू आर फुली रिकवर्ड फ्रॉम सर्जरी and you can take the vaccine. If you are in chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, you are undergoing radiation, you can take COVID vaccine. Right. So this is a very pertinent question and answer in these times कि अगर आप मतलब आप कैंसर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ट्रीटेड हैं ऑलरेडी, you can still go ahead and take the COVID-19 vaccine without any worry. Yes. Are there any other questions from anybody? Excuse me, madam. What's Yes. uterus fibroid? Sorry? Uterus fibroid क्यों होता है? यूट्रस फाइब्रॉइड. यूट्रस फाइब्रॉइड क्यों होता है? डॉक्टर तोषनीवाल. यूट्रस फाइब्रॉइड जो है, हाँ, यूट्रस फाइब्रॉइड भी अभी जो है उसके इट्स नॉट कैंसर, इट इज बेसिकली अ बेनाइन डिसीज. यानी कैंसर नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल गांठ, जो मैंने बोला था कि गांठ आई भी ब्रेस्ट में 80% टाइम वो कैंसर नहीं होता है, वो कुछ और होता है. तो यूट्रस में भी ऐसा होता है कि यूट्रस में भी अगर गांठ आई तो हर गांठ कैंसर नहीं होती है. वो फिब्रॉइड जो है एक सब टाइप है, हाँ, वो कैंसर नहीं होता है. रेयरली 1 to 2% ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 20 years वो कैंसर में बदल सकता है, तो उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं. अब वो होता क्यों है, वही उसमें भी जेनेटिक म्यूटेशंस का ही रोल होता है. जेनेटिक जीन्स कुछ म्यूटेट हो जाते हैं, वहाँ के जो मसल्स होते हैं ये यूट्रस के, वो मल्टीप्लाई करके उसका एक छोटा लंप बन जाता है. लेकिन उसका अच्छा बात ये होता है कि वो स्प्रेड नहीं होता है कहीं और, वो वहीं पे रहता है. हाँ, उससे डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो सकती है. तो वो आपको आपके गायनेक से बात करना चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट करना है क्या या नहीं करना है. समटाइम्स यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट, कुछ नहीं होता है. Okay, Thank you, sir. There is one more question, that what are the side effects for mammography, if any, if there are any side effects for mammography? हाँ. So mammography का side effects में जैसे है, सबसे important कि during the procedure what is done is कि the breast is kept in between 2 plates and उसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है ताकि ब्रेस्ट का टिश्यू अच्छे से एक्सपांड हो और जो उसका विजुअल एक्यूरेसी है वो ज्यादा है. तो वो करते समय वो पेनफुल हो सकता है किसी वुमन को. But other than that, there are no side effects. No, there is very small, maybe 0.1 or 2% chance of increased risk of breast cancer. But as we उसका already studies हो चुके हैं कि the benefit है, that is much more than what is the risk of mammography. Dr. Toshniwal, I had a question, please. After the age of 40, do you recommend PAP test and HPV both? या दोनों में से एक? मैम, HPV vaccination and HPV vaccine can be given after age of 40 years. The benefit is debatable, but you can go ahead and take the vaccine. And pap smear testing is definitely recommended. Sir, I have one question. Yes, ma'am. Yes, मेरी लड़की अभी 11 साल की है, मतलब 11 कंप्लीट हुआ है और 12 इयर्स, तो उसको अभी जस्ट ये महीने में स्टार्ट हुआ है उसका पीरियड. तो उसको वैक्सीनेशन देना है HPV का, तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या, वो पूछना है. और वो मतलब अच्छा रहता है क्या लड़की को वैक्सीनेशन देना? हाँ मैम, वही अभी तो मैंने आपको बताया ना प्रेजेंटेशन में कि अगर HPV वैक्सीनेशन देंगे तो ना केवल सर्विक्स का कैंसर, लेकिन एनल कैंसर का कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर भी होते हैं HPV से, वो भी प्रिवेंट होते हैं. और कुछ एनोजेनिटल वॉर्ड्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे वॉर्ड्स रहते हैं, वॉर्ड्स, ये वॉर्ड्स भी नहीं होते हैं.
और उसके अलावा जो है आपको देना चाहिए। साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है? माइनर साइड इफेक्ट्स आ सकते, हाँ नहीं मैडम, माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके, जैसे 1-2 दिन के लिए फीवर आ सकता है, थोड़ा बॉडी में कनकन हो सकता है, थोड़ा फटीग हो सकता है, बस ये एज सच कुछ मेजर साइड इफेक्ट नहीं है उसका। अच्छा, तो देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। डेफिनेटली, यस यस, थैंक There is a यू। question one for more Dr. question, please. Oh, sorry. Okay. रेडिएशन का रेडिएशन के बाद कोई इन्फेक्शन, कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर, मैम रेडिएशन के है ना, ब्रेस्ट वाज रिमूव्ड, सो उसके बाद केमो नहीं दिया गया, रेडिएशन दिया था, तो उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं? मैम उसके ना शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म में लोकल रेडनेस होता है, स्किन का पिगमेंटेशन होता है, दुख सकता है, कभी कभी अल्सरेशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ना थोड़ा फाइब्रोसिस होता है, जिसको जैसे बोलते हैं कि जकड़न आ जाती है वहां पे, वो हो सकता है रेडिएशन का। और बहुत आपको डोज कौन सा दिया है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत कम डोज दिया है तो ज्यादा नहीं, अगर हाई डोज दिया हुआ है तो 20 years 30 years आफ्टर रेडिएशन there is 1% or less than 1% chance कि you get a secondary malignancy बोलते हैं, तो it's a very long side effect, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, यानी 20-30 साल बाद होता है वो साइड इफेक्ट रेडिएशन का। एंड उसका ऑलरेडी स्टडीज हो चुके हैं, और उसमें भी ऐसा देखा गया है कि जो रेडिएशन का बेनिफिट है इट टोटली आउटवेज द रिस्क ऑफ गिविंग रेडिएशन, इसीलिए वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में है। ऐसे बहुत सारी चीज होती है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स में वो टेस्ट करते हैं, जिसका फायदा होता है वही रिलीज होता है पब्लिक में, जिसका फायदा नहीं है या नुकसान पाया गया है वो जनरल पब्लिक के लिए कभी आता ही नहीं है, वो क्लिनिकल ट्रायल से ही निकल जाता है, खत्म हो जाता है। True. Okay. There is a Excuse question me, for Dr. one more Shruti. Just a minute, please. There is a question for Dr. Shruti. What is atopy in children and what is the cure for it? Yeah, atopy is generally allergy in children. So atopy can be due to many other things. The most common cause of atopy in children is found to be the cow milk allergy, which causes atopy. Other allergens can be there which causes atopy, and you have to screen the children. If children is having increased rhinitis or increased sneezing or asthmatic condition due to some allergen, some exposure, जैसे pets है, जैसे jute है, जैसे other things है, तो you have to screen all those things and you have to decide for your child कि किससे हो रहा है, and then there are various treatment. Yeah, what is there are various treatment options. जैसे cow milk allergy है, तो you have to reduce you have to stop the cow milk till it goes, and then other you have to eliminate those allergens. And there are many treatments like you can take antihistaminics, there are steroids, there are various other treatments which are to be taken for atopy. Right. Okay. I hope that clarifies your question. And if there was somebody else who wanted to ask. There was someone else who wanted to ask a question. Are we looking at any other questions? I think, one moment, there is something here in the chat box. I think we're done with almost all our questions. Yeah, I think pretty much done. Thank you so much, Dr. Shruti and Dr. Anu. I will hand over the mantle now to Prateek, who will give the vote of thanks. This is a very, very informative session. मेरा एक क्वेश्चन था. Oh, okay. We have one more question coming in. बोलिए. जय श्री कृष्णा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि बाईपास वाले जो कोई जेंट्स लेडीज है उन, हाँ हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ मैडम, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ सर, जय श्री कृष्णा. मैं बोली बाईपास वे वाले जो कोई जेंट्स हो या लेडीज, उनको वैक्सीन लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? नहीं मैडम, जनरली कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, एक्चुअली लेना चाहिए उनके लिए। अगर कोरोना हो गया ना और वेंटिलेटर लगा या कुछ हो गया, सीरियस हो गए, तो बहुत मुश्किल होता है। आपने डेफिनेटली उनको वैक्सीन दे लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Do we have any other questions from anybody? हेलो मैम, सर के लिए एक क्वेश्चन था कि केमो के इसमें कोई नया टेक्निक आया है क्या, कि खाली वो स्पेसिकली स्पेस के लिए ही उतना केमो देते हैं, ऐसा कोई नया टेक्निक है क्या? So only specific to that organ. हाँ, I think
that is what she means. हाँ, so there are two different aspects to that question. One is कि मेथड ऑफ डिलीवरी, यानी किस तरीके से दिया जा रहा है, वो एक तरीका होता है अलग. और सेकंड थिंग कि कीमो के इसमें कुछ स्पेसिफिक आया है क्या, यानी ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में. तो देने का जैसे मैंने बोला है कि इंट्रा आर्टेरियल, यानी एक स्पेसिफिक, सपोज अरे मेरे राइट हैंड को कैंसर है तो सिर्फ राइट हैंड को ही कीमोथेरेपी दे सकते हैं, उसको इंट्रा आर्टेरियल कीमोथेरेपी बोलते हैं. जो मैंने बोला कि अब्डोमिनल कैविटी का कोई कैंसर है तो रादर देन गिविंग एंटायर बॉडी को कीमोथेरेपी, आप डायरेक्ट अब्डोमिन में ही कीमोथेरेपी, अब्डोमिन आप डायरेक्टली कीमोथेरेपी को अब्डोमिन में पोर करते हो. तो दैट इज साइट ऑफ लाइक साइट ऑफ डिलीवरी, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरी बोलता हूँ मैं, मोड ऑफ डिलीवरी. और जो ये बोल रहे हैं उसका मतलब है टारगेटेड थेरेपी बोलने का कोशिश कर रहे हैं मैडम. टारगेटेड थेरेपी यानी क्या रहता है कि एक सेल्स पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं और ड्रग जो है वो ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो रिसेप्टर को जाके हिट करते हैं. जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनको पता रहेगा कि एक गाइडेड मिसाइल होता है, एक अनगाइडेड मिसाइल होता है. अनगाइडेड यानी आपने यहाँ निशाना लगा दिया, अभी मार दिया, वो जाके लगेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा. और जो होम्ड है या गाइडेड मिसाइल्स होते हैं उनको पहले से टारगेट दिया जाता है, वो उस ट्रैजेक्टरी पे जाके हिट करते ही हैं, उनका एक्यूरेसी ज्यादा रहता है, तो उसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं. जैसे एक शॉटगन हो गया, शॉटगन के छर्रे निकलते पूरे एरिया को जाके डैमेज कर देते हैं, या कारपेट बॉम्बिंग. और जो स्नाइपर्स होते हैं, स्नाइपर्स वो निशाना लगा के सिर्फ उतने चीज को ही मारेंगे. तो वैसे उसमें काफी नए टेक्निक्स आ गए हैं, कम से कम 25 या 30 नए ड्रग्स हैं जो अवेलेबल हैं, हम रूटीनली यूज करते हैं उसको. आपका डॉक्टर अगर कोई है पास में, कीमोथेरेपी चल रहा है तो आपको समझा देगा. There is one more question here. Somebody is asked that Thank you, sir. It's not very clear, but she's written 4th stage breast cancer recently detected. There is nothing written after that, but I'm presuming it must be ki, what are the chances of survival and is it salvageable or not? So, I madam, think that's what she wants to ask. yeah. तो इवन स्टेज 4 कैंसर ना समटाइम्स इज सल्वेजेबल. वो बेसिकली ब्रेस्ट में कितना कैंसर है और डिस्टल मेट्स कितने हैं, डिस्टल कितने जगहों पे कैंसर फैला है. अगर एक जगह ही फैला है, सपोज सिर्फ बोन्स में गया एक जगह पे, इट इज स्टिल क्यूरेबल, यानी इवन स्टेज 4 इज स्टिल क्यूरेबल. हाँ, अगर फ्लोरिड मेट्स है, ब्रेन में मेट्स है, लिवर में है, लंग में है, बहुत जगह पे फैल चुका है तो क्योर नहीं हुआ है. लेकिन ऐसा मत का मतलब ये नहीं कि क्योर नहीं हुआ तो उसको ट्रीट, केस टू केस वेरिएशंस रहेगा. और उसके अंदर सब टाइप कौन सा है, और स्टेज 4 भी है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं करना ऐसा नहीं है. सर्वाइवल, उसको मीनिंगफुल लाइफ दे सकते हैं 3 इयर्स 5 इयर्स. और डेथ तो सबका होना है, मेरा होना है, आपका होना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ दें, है ना. तो स्टेज 4 भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए ऐसा. Right. Thank you so much. I think we are done with the questions. Any more questions from anybody, please? मैम, one more question है मेरा कि सोनो मेमोग्राफी और मेमोग्राफी में कौन सा करना चाहिए, रूटीन चेकअप, एनुअल चेकअप? ये मैम कैसा होता है ना कि मैमोग्राफी ही करते हैं जनरली. मैमोग्राफी पे कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो उसके साथ में सोनोग्राफी करते हैं, उसको सोनो मैमोग्राफी बोलते हैं. तो मैमोग्राफी यानी बेसिकली मैमो यानी ब्रेस्ट, ग्राफी यानी टू मेजर. तो मैमोग्राफी इज जस्ट बेसिकली मेजरिंग द ब्रेस्ट. तो उसका एक्सरे का तरीका होता है, सोनोग्राफी से होता है और एमआरआई से होता है. तीनों मैमोग्राफी है. वो अगर यंग वुमन है ना तो एक्सरे में पिकअप नहीं होते लीजन्स, उसको एमआरआई करना पड़ता है, सोनोग्राफी करना पड़ता है. जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेस्ट के फैट कंटेंट कम होते जाते हैं, तो जो विजुअल फिडिलिटी बोलते हैं, जिसको एक्यूरेसी है, वो बढ़ती जाती है एक्सरेस के साथ में. तो वो आपके एज पे, ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर पे, साइज पे डिपेंड करता है. तो वो जो डिसीजन है कि मैमोग्राफी करना है, सोनोग्राफी करना है कि एमआरआई करना है ना, वो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करता है या रेडियोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है आपके लिए, वो सजेस्ट करेंगे. Thank you, sir. Are there any other questions from anybody, please, for both of them, for Dr. Shruti and Dr. Anup Toshniwal? Shall we wind up the session? Okay. I thank both of you all. I think I really enjoyed. I'm sure everybody else also really liked this session. It was very informative, and you put in everything very simply for everybody to understand. And this was very enlightening for both the topics, for cancer and for anemia. Thank you so much. I'll hand it over to Prateek. Over to you, Prateek. Thank you so much, Dr. Poonam, Dr. Shruti, Dr. Anup. I totally second, in fact, what Dr. Poonam was just saying. कि आपने इतना simply सब कुछ समझाया. I think for a lot of people, especially from the non-medical community,
जिनकी समझ will be very elementary at this stage, उनके लिए this must have been extremely helpful. And of course, the number of questions that came in was a testament to how interesting and engaging the topic was and the entire presentation was. So thank you so much for putting in the hard work and bringing this to us today. In fact, jab Dr. Shruti was going through her, I'll just wait for her to also, yeah. When I was saying, when Dr. Shruti was doing her presentation, मेरा side में बस Amazon खुला था because I was just adding things to the cart on everything she was suggesting, which is good for health, good for. प्रतीक किचन में भी चले जाओ, सारी चीजें किचन में है, Amazon की जगह किचन से ले लो. अंशा अभी मैं इंक्रीज की हुई होंगी किचन में से, she's like अभी तो बाहर आ and in fact when Dr. Anup was explaining everything, you know, and I was reading through the comments, I think Ms. Swati or someone made the comment around how a lot of these things actually should be taught at the school level. And in fact, not just as women, but I think even I was saying, so not just for women for their own self-care, but for men as brothers, as children, as fathers, as husbands, so important to have the basic information around these fairly alarming, you know, health conditions that we spoke about, and just nurture the nurturers, and just having that pieces of information can just keep our eyes open to you know, just preventing everything early stage, because that was a big takeaway for me. All of these are curable conditions. You just have to keep an eye open and take the action at the right time. And everyone in the audience, highly kind of, you know, a big request to you is, इसका एक जब YouTube video बनेगा, please share that with as many people in your friend circle, in your family, etc., so that more and more people can benefit from a program like this and we spread the word, right? Yes. With that, like, I'll thank MVPM for once again kind of setting up such a brilliant platform for us to be able to have a discussion, dialogue like this. And thank you so much to the audience for joining on a Sunday morning, and cannot thank enough Dr. Poonam, Dr. Shruti, Dr. Anup. This was a pleasure to be hosting you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. We'll see you all soon some other time. Just a minute. I thank MVPM for giving this platform to both of us, and I thank Madam as well as you that we had coordinated at the back end. It was really very pleasurable experience for us, and it was as a social responsibility, we are very delighted that we could do something for our community. Right. Absolutely. And happy Women's Day to once. Thank you so much. Yeah, Yes, happy more women Women's power. Day to everybody. Yeah. All right. Have a great Sunday. Thank you so much. Yeah. Thank you. Bye-bye, everybody. Namaskar.